On the behalf of the committee, MSME and Startup, I welcome today our speaker, CA Sachin ji, and our coordinator, CA Arushi ji. Our topic is today's loan and limits to MSME and the challenges faced with the bank. So I request CA Arushi ma'am, please give a welcome note to our speaker, CA Sachin ji, and give the introduction of our speaker. Arushi ma'am, you are on mute? Yeah, my apologies. Yes. Good afternoon. It is my pleasure to introduce our esteemed speaker, Sachin Dargan, who is a managing partner at Big Pocket. With nearly 2 decades of experience in the banking industry, Sachin has held key roles at renowned institutions like Standard Chartered, Yes Bank, and ICICI Bank. At Big Pocket, he leads a specialized team providing tailored financial solutions to SMEs, ranging from secured and unsecured business loans to project funding. His expertise lies in offering personalized banking services by collaborating with over 30 financial institutions, ensuring each client receives a unique and comprehensive solution. Sachin is a chartered accountant and he holds a BCom Honours degree from Delhi University, bringing a wealth of knowledge and insight to our discussion today. Please join me in welcoming Sachin Dargan. Thank you. Yeah, hi friends. Good afternoon. This is Sachin. Thanks Arushi for the welcome note, and thanks Divan. Uh, yeah, so I'll be starting. I'll be giving a discussing all the topics related to the banking industry. Although it may be a new topic for our CA fellow chartered accountants, but this is something which is growing day by day, and we should have the knowledge in this banking industry, particularly loans and limits to the MSMEs. Now, I'll be enumerating the topics which will be covering today. It's MSME definition. Just hold on. It could be MSME definition and their registration through Udyam Aadhaar. Then why MSMEs are being promoted and what are the benefits which Government of India wants MSME to have. Then there are certain schemes of Government of India for MSME funding, and that I'll elaborate, and the various loan products offered by banks. There are many type of products which MSMEs may not be aware of, and in fact, the banks also do not tell them what exactly all these products are. So that I'll be discussing in detail specifically. Then how the assessments of these loans are done, which MSME or business will get how much amount of loan or limit. Then there are certain challenges being faced by the MSMEs from banks, which I'll be discussing, and the solutions to these funding challenges. So thanks again. So now I'll start from the definition of MSMEs. So I think you can see on the screen now. Just hold on. Yeah. So earlier the definition of MSMEs was different, which was based on the criteria of investment in plant and machinery or equipment, or we can say the gross block. Now, so that was only criteria where the turnover was not used to be seen earlier. But now this criteria has been changed since past 2-3 years, where not only the investment in the plant and machinery, but at the same time turnover is also seen as a criteria for defining the MSMEs. Now, so we will discuss about micro, small, and medium. So when we talk about MSME, that means these are the MSMEs which are defined basis the turnover criteria. So we have we should have an investment of 5 crore rupees, 1 crore rupees in micro enterprises, and then if it exceeds beyond 1 crore, then it comes under the small enterprises up to 10 cr, and then after that it goes to up to 20 cr for medium enterprises, and after that, if
if this investment exceeds beyond 20 CR, then this categorization of MSME will not be there, and it will be a normal corporate enterprises. Same goes for the turnover, which is 5 crore, 50 crore, and this turnover of 100 crore, which is written is incorrect. It is 250 crore now. So up to 250 crores of turnover, the MSMEs are classified as medium, and after that it goes into a normal corporate enterprises. So hope this is clear. However, I will be taking step by step the question and answers also, because I know that it may be a new segment for anyone who is into taxation and auditing matters. But then this is also something which we should know. So my next slide is the registration of MSMEs. So so earlier what used to happen is government had many rules, regulations for registration of small enterprises. Now this has been very simplified. There is no fees for registering the Udyam registration. Rather, it's a unique platform where anyone who is doing their business can register their MSME, register their entity, and a unique identification number is provided to them. Like, for example, you must be having your date of birth certificate with you. So it is as good as date of birth certificate for a person. Like Udyam registration is for an entity. Or like you must have seen IATA license for an air flying entity, or a air cargo operator. Same way, this Udyam registration works. Now, this basically helps to access the various schemes and schemes and benefits for which are provided by the Government of India through RBI and through the various banking institutions. So when I'm talking about banking institutions, that means both private banks as well as government banks. However, other than loans, if we talk about, there are other benefits which are provided to MSMEs, which I'll discuss later on. So Udyam registration signifies that MSME is as a priority sector. So I hope you must have heard the priority sector. It's basically a sector where government gives priority, and there are certain targets given to banks to achieve their targets, to achieve their lending or deposits through MSME sector, right? So going to next slide. So this is a sample Udyam registration certificate for an entity where you can easily, so it's a job of just 5 minutes. If you have any client who want to register through Udyam, then you can do it easily, which is self-explanatory. You just have to click on Udyam registration certificate and it will be done in 5 minutes through Aadhaar link, obviously. So before I proceed further, I would like to give you the data, small data, that how much MSMEs are there, and why it is important to grow these MSMEs. There are almost 4 crores units registered under the MSME as on 31st March 24. And out of this, you will be surprised that 97% are the micro enterprises. That means these are the ones where the investment is less than 1 crore and turnover is less than 5 crores. These are those entities. So definitely these entities will grow in future, maybe in time to come, and they will become small and then medium. So we have a huge scope of work for chartered accountants also. So I am focusing on chartered accountants because they are my audience as of now. So Devang, can we have any question or shall we proceed? We can proceed after 10 to 15 minutes. We can. Sure, we can do that. Then why MSMEs are being promoted? So it's basically one of the highest employment generation next to agriculture, and you never know, probably agriculture, MSMEs may have surpassed agriculture, because day by day number of people employed in agriculture, which was 15 million, 15 crores last year August, are getting reduced day by day. वो कम होते जा रहे हैं, and the one which are employed in MSMEs, they are growing almost at 25 to 30%. So by now
although the data, I do not have the data as on today currently, but definitely they must have surpassed agriculture. So you can see that how much opportunities are there, not as a professional, as a CA, but also as an economic front. Also, the country is growing because of this only, because of MSMEs. There are only handful of corporates which are obviously governing 50% of the GDP, but then MSME governs almost 30% of India's GDP. So it is a substantial, and that is growing for sure. Then if you'll see the share of exports, which is also very substantial for our GDP criteria, that is 45% in total India's exports. So that is commendable from MSME sector. And so what I would say is, because in this country the unemployment is there, right? So obviously half of the population will go for either employment as a salaried person, the other will obviously start their own units. Now this MSME sector will further grow, this is for sure. And there are many schemes which have been given by the government of India through RBI, which I'll elaborate further. And that is the reason for this only. So we will talk about the benefits to MSMEs in India, right? There are many benefits other than loans, which I'll be focusing on maybe later part of the of my PPT or my presentation. But yes, there are tax benefits which are given to MSMEs, like they can have lower tax regime under section 115BA, where they have to pay only 25% tax rate. Rather, this tax rate goes till 15% also. So there are certain conditions which I'm not obviously elaborating those conditions, but like presumptive schemes are also open for them, 4480 AP. So these are the schemes which definitely they can take benefit of, provided they must be having some good person, good chartered accountant who should tell them that these are the things which definitely they can benefit of. Then there are loans. Loans I will elaborate later, but yes, there are collateral-free loans given to MSME sector. Priority sector lending, obviously they are priority sector, and then their interest rate is also on a reduced basis rather than on an incremental basis. The third one is government procurement. So there is a platform called government e-marketplace, GEM we call about. आप लोगों ने सुना होगा GEM का. तो जेम में होता क्या है कि इसमें कई गवर्नमेंट के टेंडर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अपने उस जेम पोर्टल पर डाल देती है, राइट? एंड देन ऑब्वियसली दीज एमएसएमईज टेक अ बिड ऑन दिस. उसपे ऑक्शन होता है और उसके बेसिस पर वो उनको टेंडर मिल जाता है. सो इट्स अ वेरी वेरी क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस. सो इट इज ऑब्वियसली हैज बीन फॉर्म्ड टू इंक्रीज और टू प्रमोट द एमएसएमईज. Then I'll come on the subsidies. There are many subsidies. अगर आप लोग एक normal किसी MSME एक normal किसी supplier से खरीदेगा कुछ भी, then they may not get a discounts and all. But अगर वो NSIC के through लेगा या कुछ state governments की agencies हैं उनके through लेगा, definitely they will be getting huge subsidies, which is obviously a breather for them to in the growth path. So subsidy में खाली इतना नहीं है, इसमें और भी कई एजेंसीज हैं which I am not getting into, but yes, we can discuss later on also, maybe after this presentation. If anybody would want to reach out to me, they can, definitely it's not an issue. Then there are schemes to protect their payments. आप लोगों ने सुना होगा MSME समाधान पोर्टल. So आज की डेट में, so this समाधान पोर्टल is something जहां पर आपको अगर कहीं भी कोई आपकी पेमेंट फंसी है, right? In fact, if I think you all must be knowing about the MSMEs criteria, where government has prescribed that payment to MSMEs must be released within 45 days of the goods sold. So this is also one such example जहां पर कहीं पेमेंट कुछ फंसी होगी, through this MSME समाधान portal you can easily resolve it. So this is one such protection given to MSMEs. Then there is a platform called Trades. Trades क्या होता है? Trades is basically a bill discounting platform where if you purchase or if you sell something to a big corporate, right?
So, okay, I'm coming this to later on because I have explained TReDS also in my later slides, right? And then there is a scheme called ECGLS scheme, which was an emergency credit line from Government of India, which was extended in COVID-19 in 2021 and then in 22 also, where जहां पर हुआ क्या कि जो भी loans banks ने दिए हुए थे in MSMEs को, obviously nothing was moved that time, everybody was at standstill, कोई काम नहीं था, कोई business नहीं था. Then in that case government had took a decision and guided RBI as well as banks कि the loans which are standing should not be required to be repaid for a certain time. In fact, a 20% of that outstanding should be given to MSMEs on an immediate basis. तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए लोन खड़ा है या ओवरड्राफ्ट खड़ा है एंड ही इज यूजिंग इट दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, तो उसको 20 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा उसके अकाउंट में टू सपोर्ट देयर बिजनेस, टू सपोर्ट द सैलरी ऑफ द स्टाफ, टू सपोर्ट द कॉर्पोरेट और स्टैट्यूटरी ड्यूज. That was a huge and big, commendable decision by the government, which has helped many MSMEs to come out of the issue which we faced 3 years back. So this was all about this was a snapshot about benefits which are giving to MSMEs, which are given to MSMEs by India, Government of India. Then I'm coming on the next slide, which is schemes of various fundings to MSMEs by the Government of India. So I will elaborate each scheme one by one. The one is the Startup India scheme, then Prime Minister's Employment Generation Program, credit. So it's a CGT MSE, it's a Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, then Pradhan Mantri Mudra Yojana. We must have heard all these schemes in a day in, day out, but we don't know about ये होता क्या है, ये कैसे मिलती है. Nobody knows. Only those people know who are either in the banking industry or the ones who are managing the finances of a company. But then again, अगर कोई CFO manage कर रहा है finance, तो he obviously that company will not be a MSME, rather it will be a big corporate, right? So MSMEs कोई लाला होते हैं, generally लाला type companies होती हैं, but they do not hire any special finance professionals. So this is very much important for their chartered accountants, their auditor, to understand that ये schemes हैं जो अपने clients को वो अपने उनको बता पाएं अपनी companies को. So this is most important for them. Then trade receivable discounting, I told you, TReDS. SME IPO is one such thing जहां पर एक एंटिटी अपना डेट नहीं लेना चाहती है, बट दे वांट टू गेट इनटू द कैपिटल मार्केट थ्रू आईपीओ. पहले क्या होता था कि आपको मिनिमम कैपिटल एक इतने सर्टेन परसेंटेज पर रखनी होती थी, वहां ऐसा कुछ नहीं. एसएमई आईपीओ इज वन वेयर जहां पर मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है और आप उससे पैसा जनरेट कर सकते हो, एंड दे आर डूइंग इट वेरी गुड. आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड ऑल द एसएमई आईपीओज आर गेटिंग good response. Then there is a Samadhan portal I told you, and then section 43BH of IT Act. So this is related. 43B IH अगर आप देखेंगे, this section is related to Samadhan portal. So 43BH says that 43B says that कि जो आप deduction लेते हो अपने expenses की, that needs to be on actual basis. There are certain expenses which can be taken as a deduction only on the actual payment basis. तो यहाँ पर वो एक्चुअल पेमेंट जो H इन्होंने सबसेक्शन H डाला है, दैट इज रिलेटेड टू द MSME पेमेंट्स बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम देयर कस्टमर्स. तो कोई भी कंपनी होगी, दे आर बाउंड टू गिव देयर MSME सप्लायर टू पेमेंट विद इन 45 days, which is commendable. और उसमें मुझे कितने सारे लोगों, कितने क्लाइंट्स ने कॉल किया कि सचिन जी अब इसमें क्या करेंगे हम, ये तो पेमेंट हमारी कईयों ने कहा कि हमें देनी पड़ेगी, कईयों ने कहा कि जी हमें लेना ये पड़ेगा. इट इज गुड दैट वी डू नॉट नीड नाउ लोन बिकॉज जो पैसा रुका हुआ है वो आ जाएगा. सो इट्स कमेंडेबल. नाउ वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. स्टार्टअप इंडिया. सो स्टार्टअप इंडिया सबने सुना होगा. स्टार्टअप इज अ वर्ड जो इट्स अ वेरी हैपनिंग वर्ड,
मतलब हर बंदा, इनफैक्ट मेरा बेटा मुझे कहता है पापा ये स्टार्टअप करो आप, मैं ये करवाऊंगा. सो एंड आई हैव हर्ड फ्रॉम माय इनफैक्ट टीम आल्सो. इनफैक्ट मी I so my firm is also a startup. So my only point is that Startup India is nothing but it's a benefit, or it to encourage a new entrepreneurs. The government of India has introduced this as you know, and they are so they can fund their startup business through some banks, the limit of which is as good as 10 CR. But there are certain conditions for that that startup should not be older than 10 years. It cannot be as good as a latest startup, like they have formed an entity and they can go to a bank. ऐसा नहीं है कि बैंक के पास सीधा चले जाएंगे और वो दे देंगे. They have to prove that they have that experience. They are into a technology upgradation scheme, और वहां पर उनकी innovative approaches हैं. Basis that only they have to register in DPIIT. So it's a department where Department of Industrial Trade and Promotion, so something like that. So DPIIT में register करने के बाद आपको कुछ conditions हैं which you have to fulfill. Your turnover should not be more than 100 crore. ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टार्टअप ऐसा हो, कोई एंटरप्राइज MSME ऐसा है जो 90 करोड़ तक उसकी टर्नओवर पहुंच गई है एंड 9 साल हो चुके हैं. स्टिल he will be that company will be eligible for that, क्योंकि उसने अभी तक वो 10 साल पूरे नहीं हुए उसके इनकॉर्पोरेशन के और टर्नओवर 100 से ऊपर नहीं हुई है. सो they have a huge benefits. 10 करोड़ की फंडिंग तो एक साइड है, उसके अलावा जो टैक्स बेनिफिट्स हैं 3 साल तक उसे कोई टैक्स नहीं लगेगा, which is a huge benefit for them. So details are obviously there. It is because it's a very short session. I cannot explain it in detail, but yes, this is ये जो ऐसी एक startup scheme है that is coming. I can say that lot many banks are doing it. Particularly government banks are promoting it, but some of the private banks have also started giving funding for Startup India. Yeah, Devang, I think. Yeah, Arushi ma'am. Yes, Arushi sir. ma'am. हाँ जी, I'm sharing. There is some questions I'm sharing with you. You can ask with our speaker, sir. Sure. Just give me 2 minutes. I'm sharing with you. Yeah, share. Okay, so I'll go one by one. So Sachin, so the first question is, what is credit guarantee scheme for MSES? Sorry, can you come again? What is the credit guarantee scheme for MSEs? Yeah, so in fact मैं अभी उस पर आया नहीं था, but yes, I can come straight away on that slide. Credit guarantee scheme is basically a scheme जहां पर आपको एक, so government has allowed that so because we know that MSMEs are the one where they may not have that much of collateral in the form of property to be given to the bank, right? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि इनको प्रमोट करने के लिए 5 करोड़ तक का टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल they can the banks can sanction their loans up to 5 CR without taking any collateral. अब होता क्या है, बैंक obviously will say कि and it was discussed in a committee. ये अभी नहीं हुआ, ये काफी पहले से चल रहा है CGTMSE. पहले it used to be a 2 CR. Now for the last 6 months or 1 year it has been increased to 5 CR. तो होता क्या था, banks used to say to government of India कि आपने तो बोल दिया कि विदाउट कोलेटरल ले लो, व्हाट इफ कि वो कोलेटरल है नहीं और वहां डिफॉल्ट होता है, then in that case government has told that they will give the guarantee of up to 75% of the loan amount to those relevant banks, right? So वो जो 75% की गारंटी है वो बैंक को गवर्नमेंट देती है, और उसके लिए गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट गारंटी नॉमिनल सी फीस चार्ज करती है, दैट मे बी इन द रेंज ऑफ
50 paisa to 1% from the particular MSME. So herein, obviously, there are certain conditions which needs to be proved, that there has to be proven record. Like if you can see on the slide, I have written that eligible borrowers must have a proven track record. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले साल में ही आप स्टार्ट करें अपना बिजनेस और गवर्नमेंट बैंक्स के पास जाएं कि मुझे लोन चाहिए CGTMSE में. They will not be eligible. So when we are talking about proven track record, that means they must be, they are the ones. Proven means they must have achieved some of the turnover. They must have their own capital also introduced into the business. तब जाके उनको, फॉर एग्जाम्पल, एटलीस्ट 3 years, जनरली बैंक्स का क्या है, they take at least 3 years of balance sheet, which is obviously audited balance sheet, to see whether their turnover is increasing, whether their profit is also not shrinking, rather increasing, whether they have invested their capital into the company, whether or not they have withdrawn any capital or not. Right? So these are the things which obviously banks consider before giving any loan to any MSME. और एक thumb rule ये होता है जो मैंने लिखा है कि टर्नओवर का 20% ये लोग देते हैं. Now it depends on bank to bank कि वो 20% टर्नओवर कैसे देखते हैं. वो लास्ट ईयर ऑडिटेड देख सकते हैं, वो इस साल का प्रोविजनल देख सकते हैं, वो नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्शंस देख सकते हैं. अगर एक कंपनी पिछले 6 सालों से continuously year on year grow कर रही है, then obviously they can take a call on this company to get the projected turnover of another 20% hike, and that basis that only वो 20% उसके ऊपर लगा के दे देंगे. So it depends on bank to bank. So that is, and every year ये limits और loans renew होते हैं, और renewal की फीस बैंक भी लेता है, plus renewal फीस CGTMSE जो ट्रस्ट है वो भी लेता है, because obviously it's a kind of an insurance given by CGTMSE to the banks. However, I will tell you, CGTMSE कभी ये नहीं बोलता है कि आपको आपकी अंडरराइटिंग कैसे करनी है. So when we are talking about underwriting, that means आपको एक कंपनी है MSME का क्रेडिट रिस्क आप खुद देखो अपने आप. You are very much well versed with everything. बैंक को ये कहता है मुझे आप जो भी दोगे कि ये आपने इसको हमने सैंक्शन किया है, इसका हमें गारंटी दो, वी विल ओके टू गिव दैट गारंटी. बट एट द सेम टाइम दे आल्सो डू देयर ओन ऑडिट्स ऑन अ ईयरली बेसिस, कि ऐसा ना हो कि बैंक और MSME कुछ गलत फंडिंग कर रहे हो बैंक ऑफिशियल्स, तो उसके लिए एक ऑडिट भी होता है. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्कीम. Okay, thank you, Sachin sir. The next question is, do we still have the ECGLS scheme? Sorry? So the next question is, do we still have the ECGLS scheme? ECGLS scheme. Right, sir. Okay, I wrote ECGLS here, no? ECGLS, COVID-19 scheme, right? That is what they are asking? Right, sir. Okay, so is it still there? So I'll tell you. I think that the answer lies in the question. If COVID is not there, then how can it be there? But क्योंकि ये तो कोविड से लिंक था, ये था क्या, ये 20% जो मैंने बताया था, ये गवर्नमेंट ने अब MSMEs को दिया था, which was उसमें 2 साल का EMI holiday period था. That means they were not required to give anything up to 2 years, and post that in the next 3 years they had to repay that loans. तो वो धीरे धीरे MSMEs के जो loans ECGLS है, they are getting repaid. But obviously now if somebody wants to avail this facility, it's not there because वो COVID effect था. Now market has been opened up, everybody is now become normal. So this scheme is running as of now, but new sanctions obviously cannot be done by the banks. But the old repayments are getting it paid to the banks. Okay. So the next question is, what is the limit of an MSME loan? Sorry, Arushi? What's the next? Yes, sir. I'll repeat. Yeah, the next question is, what is the limit of an MSME loan? What is the limit of MSME loan? Right, so sir.
So there are many schemes, as I'll come into that also slowly and gradually. Like these are the okay. So these the schemes which I have written in this slide are not a comprehensive schemes, but an inclusive schemes. There may be another 20 schemes may be there, but I have written the ones which are very much you can see every now and then, और वो हर जगह आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. बट हाँ, छोटी स्कीम्स और भी हैं, लाइक विलेजेस की, टायर 3 cities की, which I have obviously not mentioned due to time constraint. Now you're talking about the amount limit है कितनी? तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो स्टार्टअप इंडिया की है 10 करोड़ की. 10 करोड़ इज द मैक्सिमम अमाउंट इन स्टार्टअप इंडिया. Same way, if we'll talk about like okay, so I'm coming into that. I think ये इनके अंदर वो कवर हो जाएगा पॉइंट. CGTMSE में 5 करोड़ है, स्टार्टअप में मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि ये 10 करोड़ है, ऐसे ही और भी हैं. सो आई एम कमिंग इनटू दैट ओनली. Other than this, is there anything which I need to clarify? And so just one last question for the first part. What are the 4 major problems faced by MSMEs? What are the 4 major problems? Right, 4 major problems faced by MSMEs. 4 major problems. Okay, that is again. So if you will see my topic and the first slide. So the challenges being faced by MSME from banks, that is there. I will be coming on to that in the time to come. So the person who is seeking this solution will have to wait for some time, maybe half an hour. Okay, sure, sir. Yes. Thank you. Thanks. So these were the only questions as of now. Okay. Yes, sir. So I have covered Startup India. Then it's a Prime Minister's Employment Generation Program. So ये Prime Minister का ये आज अभी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है ये PM Generation Program. इसमें so because Modi ji is very bullish on the businesses, right? Everybody knows. And basis that only he covers almost everything, every sector. क्योंकि MSME जो सेक्टर है, दे आर द वंस जो आगे जाके कॉर्पोरेट्स भी बनेंगे धीरे धीरे. एंड बाय जो हमारा टारगेट है 47 का डेवलप्ड नेशन का, दैट आई कैन सी दैट वी विल अचीव दैट टारगेट फॉर श्योर. द कंसीडरिंग वी विल बी गेटिंग द काइंड ऑफ स्कीम्स, बट यस दीज स्कीम्स नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड आल्सो. अब इसमें है क्या, इसमें सीधा हालांकि बहुत ज्यादा इसमें इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर हमें दिखेगा, अगर हम देख रहे हैं बीइंग टीयर 1 सिटी में अगर जो लोग बैठे हैं या टीयर 2 में, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट सिर्फ 25 लाख की होनी चाहिए इसमें, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख की. इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लगता नहीं है कोई भी अभी स्टार्ट करता होगा. मतलब अगर वो करेगा तो बड़े छोटे लेवल पे करेगा. तो उस छोटे सेक्टर में आई मीन टीयर 3 सिटीज में करते होंगे. 25 लाख टीयर 1 में ज्यादा कुछ नहीं है, बट डेफिनेटली इस 25 लाख के में 25% गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी. इफ यू हैव अ कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट विद यू, आपको पास पूरा बिजनेस प्लान है, एंड यू नो दैट कि मेरे को ये रूरल एरियाज में ही है, तो वो 25% सब्सिडी आपको मिल जाएगी. और अगर वो प्रोजेक्ट आपका अर्बन एरिया में है, तो 25 का 10% इज 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी. और प्लस अदर देन दिस, बाकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है सिर्फ आपको 10% देना है, बाकी एवरीथिंग वुड बी फंडेड बाय बैंक्स इटसेल्फ. तो आई थिंक, और ये इसमें एक उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन से सेक्टर में ये देंगे. इट इज बेसिकली मेंट फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसंस, खादी ग्रामोद्योग, विलेज हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स. तो ये इनको एनकरेज करने के लिए है. और अगर लोग ये चीज समझेंगे, अब आई कैन बेट दैट अगर हम डेटा कहीं से भी निकालें, तो ये जितने भी जो सेक्टर अभी मैंने बात करी है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम या आर्टिसंस, इनमें मुश्किल से 10% सब्सिडी ऐसी होगी जो ये गई होगी. दैट इज नॉट बिकॉज बैंक इज नॉट विलिंग टू डू. बैंक्स तो कह रहे हैं. इनफैक्ट आई मेट मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कहते हैं कि सचिन जी आप हमें क्लाइंट दीजिए, हमारे टारगेट्स हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच यू जनरली दे वर नॉट कंसीडर्ड टू डू many businesses, now they are coming to our offices to get the business. तो उन लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग देने को तैयार नहीं है, but it is a lack of information, lack of
स्प्रेडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि हम लोगों को पहुंचानी है। तो यहाँ पर ये मैं किसी को जो भी द ऑडियंस जो भी हैं उनको मैं यही कहूंगा कि ये स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर हम बैंक्स के पास जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल एंटरटेन अस लाइक एनीथिंग। उनको पैसा बांटना है, और आज तो इतनी लिक्विडिटी है पिछले 2 सालों से। I think this is the right time if somebody wants to start a businesses, be it in PMEGP or maybe CGTMSE or in any other scheme, right? Then coming on CGTMSE, I have covered, I think, while answering somebody's question, I have covered this thing. CGTMSE एक ऐसी स्कीम है जहां प्राइवेट बैंक्स आर ऑल्सो गिविंग लोन्स। जनरली जो आपकी छोटी मोटी स्कीम्स हैं उसमें प्राइवेट बैंक इतने इंटरेस्ट नहीं होते हैं इंटरेस्टेड, बट सीजीटीएमएसई इज द वन जहां एवरीबडी इज बुलिश, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या सरकारी या प्राइवेट बैंक्स हो, दे वांट टू गिव लोन्स, बट यस दे शुड आई मीन वी शुड टेल देम और वी शुड शो देम कि हमने कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया। देयर इज अ एप्लीकेशन कॉल्ड सिबिल. So CIBIL, keeps the data of all the banks and all the banks clients, so that आप कभी भी कोई आप जाते हैं बैंक्स में तो वो आपको क्या पूछता है जी CIBIL कितना है। तो CIBIL not only gives data about your individual profile but also for your corporate profile also. तो वहां पर आपको ये पता चल जाएगा, आपको कुछ नहीं पूछना है क्लाइंट से, एक अपना पैन नंबर लेना है, वहां बैंक अपने आप डिराइव करेगा सिबिल, आपको पता चल जाएगा कि कितना उसने डिफॉल्ट किया है या कितना क्लीन है वो। एंड बेसिस दैट दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी बैंक टू गिव फंडिंग टू गिव और नॉट टू गिव फंडिंग टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। तो इसमें ये जो लिखा है लाइन, इट मस्ट हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, आई थिंक ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, और जैसे ही वो डिफॉल्ट आएगा तो वो डिसप्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, तो वहां पर वो केस फिनिश, राइट। बट यस यहाँ फंडिंग हो रही है सीजीटीएमएसई में खूब। देन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुना तो हमने काफी है, पेपर्स में भी पढ़ा है, बट अब ये किनको मिलती है? इसका सिर्फ 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम लोन बिजनेस को इसको देते हैं, वो भी तब देते हैं जब वो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं एमएसएमईज। तो इसमें होता क्या है, 50,000 रुपए। सो दीज आर द स्टेजेस व्हिच आई हैव रिटन, शिशु, किशोर, तरुण। तो शिशु मींस द वन जो चाइल्ड है, तो अभी तो वो पैदा ही हुआ है, स्टार्टअप पैदा ही होता है, तो उसको तो अभी हम 50,000 रुपए देंगे। उसके बाद किशोर हुआ टीनेजर। अब यहाँ पर ये कोई ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है कि ये कब शिशु होगा कब किशोर, उसमें डिटेल्स दी हुई हैं जो ये विच आई विल गिव एवरीथिंग टू, अगर किसी को जानना होगा ये तो मैं सब बता दूंगा उसमें बाद में। बट ये इसमें एक सर्टेन टेनर होता है कि 1 से 3 साल तक वो स्टार्टअप हुआ, 3 से 10 साल तक वो किशोर में रहा ऐसा, और उसके बाद वो तरुण बन गया, तो उसमें 5 लाख से 10 लाख तक भी देते हैं, और ये सारा कोलेटरल फ्री होता है। बट हाँ, आपको 5 साल में इसको वापस देना है। सो दिस इज कॉल्ड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। Then this is a platform which I was discussing while starting my session, trade receivable discounting system. Now this trade receivable discounting system होता क्या है? ये बेसिकली होता ये है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब आपने बिजनेस किया, आपने माल बेचा, माल बेचने के बाद आपके कुछ डेटर्स खड़े होते हैं, उनको डेटर्स कहते हैं। वो जो ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर होते हैं वो हम बिल लेते हैं। अब अगर वो ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो दे आर नोन कॉर्पोरेट्स, ब्लू चिप हैं, या जिनकी रेटिंग AA एंड अबव है, उन क्लाइंट्स को वो जो बायर्स हैं वो ऑब्वियसली पैसा तो अपने हिसाब से देंगे, एंड उनका एक टाइमलाइन होगा, चाहे वो 30 डेज होगा, 60 होगा, 90 होगा, 6 मंथ्स भी हो सकता है, बट वो आपके बिल पर लिखा होता है। नाउ अब ये माल तो बेच दिया, पैसा तो आगे के माल बनाने के लिए भी चाहिए। So what government of India has done is they have introduced this trades platform, जहां पर उस बिल को डिस्काउंट कर देंगे, और वो बिल डिस्काउंटिंग जनरली कोई पुराना नया नहीं है, बहुत पुराना वो है ये फैसिलिटी है, लिमिट है, बट वो बैंक्स करते थे पहले, और वो अपने हिसाब से चार्जेस लेते थे, क्योंकि यहाँ आपको
कोलेट्रल भी देना पड़ता था कुछ। यहाँ पर कोई कोलेट्रल नहीं है, रादर एक बड़ा बढ़िया फीचर इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड मल्टीपल फाइनेंसर्स, दे हैव अलाउड मल्टीपल फाइनेंसर्स कि आप लोग आओ वहां पर अपनी बिड करो कि ये बिल आपको खरीदना है। सपोज मैं कुछ माल सप्लाई कर रहा हूँ टाटा मोटर्स को, मैं ओईएम हूँ और माल सप्लाई कर रहा हूँ टाटा मोटर्स को। अब मुझे पता है 6 महीने से पहले पैसे मेरे आने नहीं है, तो वो जो बिल मुझे मिला, दैट्स ऑब्वियसली इट्स अ रेनाउंड कंपनी, इट्स अ ब्लू चिप फर्म, मैं वो उस बिल को ट्रेड्स में डालूंगा। ट्रेड्स में वो बिड्स लगेंगी डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल फाइनेंसर्स की जो वहां पर एनरोल्ड हैं। वो बिड क्यों लगेंगी, कौन मुझे सबसे सस्ता बेचेगा माल, सबसे सस्ता मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे सस्ते की बात कर रहा हूं। तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसका सबसे कम होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगी बिड, और वो मुझे पैसा मेरे अकाउंट में नेक्स्ट डे आ जाएगा। अब द पॉइंट इज दैट कि पैसा तो आ गया, मेरा काम चल गया एमएसएमई का, बट देन दिस मनी हैज टू गो टू दैट फाइनेंसर आफ्टर 6 months, क्योंकि मुझे पता है वो 6 महीने बाद तो टाटा मोटर से मुझे मिल जाएगा। तो उसके अंदर एक पॉइंट, लेकिन उसके अंदर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, बट देन दीज आर विदाउट रिकोर्स। सो दिस डिस्काउंटिंग मे बी विद रिकोर्स एंड विदाउट रिकोर्स। विद रिकोर्स का मतलब ये है कि अगर उस फाइनेंसर को पैसा नहीं मिलता है टाटा मोटर से, तो जो एमएसएमई है जिसका बिल डिस्काउंट हुआ है दैट विल बी लायबल, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है, ये विदाउट रिकोर्स है। यहाँ अगर वो पैसा नहीं भी मिलता तो एमएसएमई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमएसएमई इज नॉट रिक्वायर्ड टू बियर एनीथिंग, रादर दैट फाइनेंसर विल बियर द रिस्क ऑफ नॉन रीपेमेंट। ये एक ब्यूटी है इसकी। बट ऐसा नहीं है फिर कि एमएसएमई मारने बैठ जाएंगे पैसे, तो कि हर चीज उसमें ऐसे उसको दो। सो अंडरस्टैंड करिए आप ये आइडिया क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये विदाउट रिकोर्स है बिकॉज हम लोग बिल डिस्काउंट कर ही उसका रहे हैं जो एक ब्लू चिप कंपनीज है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू टू नॉन रीपे द अमाउंट ऑफ एनी एमएसएमई। पहली बात तो वो 45 डेज वाला रूल है, दैट इज ऑब्वियसली कवर्ड, क्योंकि अगर 45 दिन तक पैसा ही नहीं देंगे वो, तो वो दे कैन नॉट टेक दिस एज अ डिडक्शन फ्रॉम देयर एक्सपेंसेस, राइट। सो ये एक चीज है, प्लस जो उनकी रेपुटेशन है विच विल बी एट रिस्क। हालांकि फाइनेंसर बियर कर लेगा ये चीजें, बट देन उनकी रेपुटेशन रिस्क पर हो जाएगी। तो ये चीजें मैटर करती हैं, इसलिए वो जनरली पैसा ट्रेड्स में मरता नहीं है किसी का भी, एनपीए नहीं होता है, right? I hope I'm clear. If any doubts, definitely we'll be coming on to that also. SME IPO. Now SME IPO जनरली पहले हम सोचा करते थे काफी कि ये IPO इस मतलब when we were also studying, we were कि भाई ये स्टॉक मार्केट का यार ये तो बहुत बड़ी चीज होती है IPO, इसको इतनी चीजें पब्लिक प्रोस्पेक्टस ये वो प्लान कितनी चीजें करनी होती हैं आपको। बट अभी SME IPO में आप भी MSME, कोई नॉर्मल MSME कैन ऑल्सो टेक पार्टिसिपेशन। उसमें देयर आर ओनली सम ऑफ द कंडीशंस जो ऑब्वियसली दे आर इन डिटेल, बट अभी मैंने छोटी कंडीशंस थोड़ा सा यही लिखा है कि उनका क्लियर ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रैक रिकॉर्ड, दैट मींस सेबी, दिस इज गवर्न्ड बाय सेबी ओनली। सेबी उनका देखेगा सिबिल खराब ना हो उनका वो वॉच आउट इन्वेस्टर लिस्ट में ना हो, वो आरबीआई डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं होंगे, उनका कोई सोशल साइट्स पे कोई उनके अगेंस्ट कोई केस नहीं है, उनका जो कोई लॉ में कोई केस नहीं चल रहा है, अगर कोई चल रहा है तो वो उन्होंने डाला है ना कि किसी और पार्टी ने डाला है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, राइट। सो दिस डिफाइंस ट्रैक रिकॉर्ड। यू कैन नॉट से अ पर्टिकुलर थिंग दैट कि हाँ खाली सिविल ओके है तो हम नहीं करेंगे, हम करने देंगे, नहीं। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी qualified, and then they should have a positive net worth and operating profit in the last 3 years. So उनका operating profit होना चाहिए पिछले 3 सालों में, और positive net worth. So when we talk about net worth, तो हम लोग जनरली ये देखते हैं कि net worth का मतलब है कैपिटल, लायबिलिटी साइड में कैपिटल आ गई प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आए, ये हो गया net worth। नहीं, net worth का मतलब है कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस plus any funding received from friends or family by that MSME, and which is obviously non-interest bearing, जो वहां रहेगी अपने बिजनेस में। And then we also deduct any funding which has gone out to any other person
or any friend, or maybe gone out to purchase some other investment property. तो भाई यहाँ पे तो आपने कैपिटल डाल दिया, वहां पर आपने प्रॉपर्टी खरीद ली एसेट साइड में, और वो प्रॉपर्टी बिजनेस से लिंक्ड ही नहीं है, तो वी विल रिड्यूस दैट. सो दे शुड हैव अ पॉजिटिव नेटवर्क. सारा पैसा अपने बिजनेस में जाना चाहिए, ना कि दैट शुड बी डाइवर्टेड टू सम other places like stock market or investment property. And this net tangible assets should be greater than 3 crores. So when we are talking about net tangible, that means all the assets minus में liabilities. They should have a net tangible assets which should be greater than 3 crore. So अभी मैं इसमें इतना ज्यादा एंटर नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा जो सेशन है वो लोन से रिलेटेड है. लोन्स का क्या है, अभी आई विल बी कमिंग ऑन द असेसमेंट्स ऑफ वेरियस फैसिलिटीज ऑल्सो, ताकि वो आपको पता चले कि ये बैंक्स क्या देखते हैं और क्या क्या इश्यूज हमारे को आते हैं. वो मैं ऑब्वियसली लास्ट स्लाइड्स में वो भी कवर करूंगा, राइट. 43B ये मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया. ये बेसिकली 45 दिन तक हमें वी हैव टू मेक द पेमेंट, अदरवाइज वो उस फाइनेंशियल ईयर में हमें डिडक्शन अलाउड नहीं होगी. वो उसी फाइनेंशियल ईयर में होगी जिस फाइनेंशियल ईयर का. रादर इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि देर आर एमएसएमईज जो मेरे को बोलते हैं कि यार अब हमें लोन की जरूरत नहीं है, हमारे पास तुम्हारे लिए तो ये आ गया है, ये 43BH, और कितनी पेमेंट शॉर्ट हुई हैं. आई थिंक मतलब कमेंडेबल जॉब बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि जिन्होंने ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करी हैं. Okay, now before going to this slide, I will ask Arushi if she can ask anything, or Devang if अगर कोई क्वेश्चन आए हो, because उसके बाद असेसमेंट्स आ जाएंगी जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स वाइज मैं बात करूंगा, एलेबोरेट करूंगा क्या क्या प्रोडक्ट बैंक्स देते हैं. तो उससे पहले हम कुछ पूछ सकते हैं. Sure. Rishi ma'am, you can ask. Okay. Yeah, sure, sir. So, sir, we have another question which says, which bank is best for an MSME loan? लोन का Which bank Is best for MSME loan? which bank is best for MSME? So I have told in the start of my session that every bank have their targets to give loans to MSMEs. They have a 40%. So out of the total loan book, they have a target of 40% to be given to the MSMEs or priority sector lending. अगर कई बार ऐसा होता है, I have seen बुक जो हमारी टोटल लोन बुक होती है बैंक्स की, अगर कई बार वो टारगेट अचीव नहीं हो पाते हैं तो दे जनरली परचेज दिस फ्रॉम वेरियस एनबीएफसीज. वो एनबीएफसी से खरीदते हैं उसको कि ये हमारी बुक के अंदर ऐड हो. तो एवरी बैंक is obviously hungry for MSME loans. They generally give maybe 50 paisa or 1% rate of interest lower than what they give to a normal customers. तो वहां पर कहीं ना कहीं अब बेस्ट का हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बट हाँ हर बैंक की अपनी अलग अलग पॉलिसीज हैं. कुछ उसके लिए भी मैंने सारी चीजें कवर्ड हैं, अभी मैं बोलूंगा. आई थिंक हाउ मच टाइम इट रिमेन्स अभी है. सो आई हैव 1 hour ना. हाँ ठीक है. सो अब इसमें होता क्या है, हर बैंक की अलग पॉलिसीज है. सपोजिटली अ बैंक लाइक HSBC, राइट. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कोई इसमें एक्चुअल वो नहीं है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. HSBC wants some niche customers to come. They want जो प्रोफाइल्स होंगी वो बिल्कुल अर्बन एरिया की हो, नीच हो, MSME में भी कवर हो जाए सारी चीजें, राइट. एट द सेम टाइम अ बैंक लाइक HDFC और ICICI, they are not class but they are mass banks. तो उनको अपने टारगेट्स भी कवर करने हैं और हर सेगमेंट कवर करनी है उनको, राइट. तो अब कई लोग प्रेफर ही करते हैं कि हमें HSBC से चाहिए, somebody would prefer कि हमें लोन चाहिए तो किसी से भी ले दीजिए, तो वो HDFC आ जाते हैं, राइट. HDFC has a vast network of branches also. Although we are in the era of branchless banking अभी, बट स्टिल ब्रांचेस मैटर करती हैं उसको. तो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है. कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो MSME के लिए किसी बैंक के पास नहीं है, और उस केस में हम कुछ कर नहीं सकते. व्हाई देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू आस्क व्हिच इज द बेस्ट बैंक, व्हिच इज द अवेलेबल बैंक. आई वुड से जहां सबसे ज्यादा बेस्ट बैंक वही है
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे सबसे आउट ऑफ द लॉट, मैक्सिमम अमाउंट दे, मिनिमम कोलेक्ट्रल ले, एंड ऑब्वियसली कंडीशंस कम हो, क्योंकि जनरली होता क्या है, सब कुछ दे दिया, उसके बाद इतनी कंडीशंस रख दी उन्होंने कि वो एमएसएमई बेचारा वो कंडीशंस ही पूरी करता रह जाता है। लाइक स्टॉक स्टेटमेंट हमें देनी पड़ती है, ड्राइंग फॉरवर्ड स्टेटमेंट जनरली बैंक स्टेट्स व्हेन दे गिव देयर कैश क्रेडिट, राइट। अब उसमें बेस्ट क्या करेगा, पैसा तो मिल गया बट दे कैन नॉट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो ये ऐसी चीजें हैं which we have to see case to case basis पर। Okay. Okay, sir. Thank you. So the next question is, how much subsidy is offered on a MSME loan? How is subsidy is offered on MSME loans? Right, sir. How much? So again, that depends. Suppose if we talk about a sector called textile, right? Then Right. they have a different kind of, because textile ministry has given certain perks to these banks कि आप इनसे 9% चार्ज कर रहे हैं, आप 9% चार्ज मत करिए, आप 4% 5% चार्ज करिए, 4% हम दे देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको, राइट। बट दिस इज अलाउड ओनली टू, सो दिस सब्सिडी इज कॉल्ड टफ सब्सिडी। इसमें होता क्या है कि आपको अपनी फैक्ट्री लगानी है टू प्रोसेस द गारमेंट्स। सेम वे देयर आर स्कीम्स फॉर गारमेंट एक्सपोर्टर्स आल्सो, कि आप एक्सपोर्ट कीजिए, वो एक्सपोर्ट सब्सिडी जो आपको मिलेगी वो 2% हम, मतलब बैंक गवर्नमेंट देगी बैंक को। बैंक ऑब्वियसली आरसी अंडरस्टैंड करना, जनरली हम लोग मिस्टेकन बिलीफ में रहते हैं कि बैंक और गवर्नमेंट सेम चीज है, सेम नहीं है। बैंक्स आर द प्रॉफिटेबल, I mean, they work for profit. They don't work for social cause. Social causes obviously are imposed by the government. क्योंकि अदरवाइज तो क्या होगा, किसी गरीब को लोन ही नहीं मिलेगा, एमएसएमई में कोई स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ स्कीम्स निकालनी पड़ती हैं जिसमें वो अपने सब्सिडी कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ in the form of reduced rate of interest which I have told you, or it may be in the form of रिड्यूस्ड लोन। तो जैसे मैंने अभी बताया एक सब उसमें कि आई एम कमिंग ऑन दैट, जस्ट होल्ड ऑन। लाइक दिस, ये जो पीएमईजीपी स्कीम है, राइट, इफ यू कैन सी दैट, मैंने इसमें आपको ये बताया कि 25 लाख रुपए का जो कॉस्ट है, वो अगर आप रूरल एरिया में स्टार्ट करते हो तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी 25 का 25%, राइट। तो वो जो 6-6.25 लाख रुपए जो आपको वो गवर्नमेंट दे देगी आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए। तो ये पैसा ये कैश फ्लो आ गया आपके पास, प्लस बाकी लोन हो जाएगा आपका। सेम वे, सो ये जो है ये एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इज बीइंग फंडेड बाय बैंक ओनली। बैंक खुद नहीं देगा, बैंक विल बी ऑब्वियसली रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, राइट। तो सब्सिडी हर सेक्टर में अलग अलग है, एक पर्टिकुलरली हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस उसमें एक पर्टिकुलर कंपनी को अलग सब्सिडी मिलेगी। हाँ, बट यस, फॉर एमएसएमईज जो भी एक नॉर्मल क्लाइंट को, एक नॉर्मल कंपनी को चार्ज होगा विच इज नॉट एन एमएसएमई, दे विल बी चार्ज 1% और 0.5% लोअर देन what these companies are being charged. तो एमएसएमई को 1-8% का फर्क बैंक देता ही है, बिकॉज दे हैव देयर टारगेट्स आल्सो, गवर्नमेंट ने उनके टारगेट सेट किए हुए हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि वी शुड ग्रो, मतलब इट्स अ फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली। ऐसा ना हो कि बड़ी बड़ी कंपनीज को, टाटा अंबानी वगैरह को सब कुछ मिल जाए और यहाँ पर ये लोग पिछड़ के रह जाएं। द आइडिया इज दैट ओनली। Okay, thank you, sir. Sir, the next question in the queue is, what is the MSME payment rule? MSME payment rule, I have just told that it should be, so from the moment the bill is drafted and signed, तो जैसे ही माल पहुंचता है उसके 45 days में you need to make the payment to MSMEs. You cannot, I mean, one cannot afford to make the payment beyond that. अगर वो बाद में करेगा तो उसमें वो समाधान पोर्टल में जा सकता है, क्लाइंट एमएसएमई, विच आई हैव टोल्ड, गवर्नमेंट की जो आरबीआई की समाधान पोर्टल है उसमें जाके वो बोल देगा ये 45 डेज से मेरे को पैसा नहीं मिला। नाउ यू गेट इनटू द पिक्चर, द आरबीआई, एंड देन दे विल आस्क दैट क्लाइंट ये पैसा दीजिए। प्लस
At the same time, जिसने पैसा देना है, they will also not be allowed to treat this supply as a deduction in their purchases. तो वो परचेज में डिडक्शन तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाएगा उनको. So it's a 45 days timeline. Okay. Sir, the last question is, what is the eligibility criteria for MSMEs to join the TREDS platform as a seller? Which platform? TREDS. Right, sir. Trades. Right. So they should have a Udyam certificate, right? There is no other criteria. They should be because they should be MSMEs. So this trades is only for MSMEs. MSMEs अगर आप हैं तो आप उस trades पर register कर सकते हैं, और वो register करने के बाद you can start putting your bills into that. इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपको अलग से कुछ आपको सर्टिफिकेट लेना है. द ओनली सर्टिफिकेट यू शुड हैव इज द उद्यम सर्टिफिकेट, बिकॉज दैट सिग्निफाइज दैट यू आर एमएसएमई, राइट? तो उसके बेसिस पर हम लोग ये आगे कर सकते हैं ट्रेड्स. एक मेरा क्वेश्चन था. हाँ जी. I have one question. Let's suppose I am a manufacturing company of electric appliances. Okay, I export my appliances to the Bhutan. So I'm not getting the payments from my clients. So what I have to do? And I am MSME registration, Udyam registered. So generally, because now you have already exported the goods, right? And अगर आपने okay, so basically होता क्या है कि अगर ये goods बाहर जा रहे हैं out of boundaries of government of India, right? तो वहां पर गवर्नमेंट की कोई कॉल नहीं होगी, राइट? क्योंकि अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो डील करेंगे नहीं वो. इट इज सिंपल, either you can so there is a एजेंसी जो इसको इंश्योर करती है, राइट? इंश्योरेंस मिलती है उसकी, राइट? तो वो आप इंश्योरेंस लेके आप कर सकते हैं, अपने गुड्स भेज सकते हैं. तो उसमें वो बेसिकली वो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट होती है, जहां वो इंश्योरेंस आप उसका करवा के तब आप अपना एक्सपोर्ट करोगे. सपोज इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी फंड्स आउट ऑफ दैट, वहां पर नहीं आ रहे हैं आपके, तो फिर आपको पैसा आपकी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट देगी, और उसके चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 2 या 3% होते हैं. सो वहां पर आप वो हो जाओगे. मींस अगर मेरा वेंडर वहां से मेरे को पेमेंट नहीं दे रहा, तो आई कैन क्लेम इट इन दैट एजेंसी. बट वो एजेंसी में तब नहीं जाओगे आप जब आपने भेज दिया और नहीं दे रहा. आपको जब आप when you are sending your goods, उस टाइम you have to register with that trust. Okay. तो जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, दिस इज अ ट्रस्ट नेम, वो इंश्योरेंस देता है, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस देता है. तो उस केस में आपको वो पहले से ही लेना पड़ेगा. सो इट्स नॉट दैट कि आज आप जा रहे हो और आपको कुछ यू आर मेडिकली नॉट फिट, और आज आप कहते हो जब मैं हॉस्पिटल चला गया उसके बाद इंश्योरेंस लूंगा. पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी नहीं देगा. आपको इंश्योरेंस पहले ही लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो आपको उसको क्लेम कर सकते हो. तो एक तो वो चीज है. दूसरा, यू कैन आस्क योर बायर, तो आपका बायर हुआ, यू आर सप्लायर, दैट गिव अस द एलसी from that bank. LC is letter of credit. वो लेटर ऑफ क्रेडिट जब आप एक बार उसका बैंक आपको इशू करेगा, आपके बैंक को, दैट मीन्स नाउ यू आर सिक्योर्ड कि अगर वो पैसा नहीं भी आता, दैट हिज बैंक हैज ऑब्वियसली अंडरटेकन टू गिव द मनी टू यू, टू योर बैंक. तो वो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है, 90 डेज में से अगर पैसा नहीं आता तो वो इन्वोक कर दोगे आप उसको, एलसी को, एंड बेसिस दैट आप पैसा सारा आपके मिल जाएगा. सेफ है बिल्कुल, अगर वो एलसी एज पर नॉर्म्स है. तो ये दो आपके सॉल्यूशन है. ओके, मींस हम थ्रेड में नहीं जा सकते इसमें. हाँ, ट्रेड्स में नहीं, इसमें तो जा ही नहीं सकते ना आप. ओके, तो आपको खुद लेना पड़ेगा. हाँ, बिल्कुल आउट ऑफ द बाउंड्री. कोई और क्वेश्चन था? ठीक है. सो नाउ आई एम कमिंग ऑन लोन प्रोडक्ट्स, राइट? तो जनरली सबने सुने होंगे ये लोन प्रोडक्ट्स. ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ, बट हाँ, क्योंकि हम लोग बैंक्स में ज्यादा डील नहीं, मतलब बैंक से डायरेक्टली लिंक नहीं होते हैं, तो हम उसको उतना ध्यान नहीं देते हैं. बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये लोन प्रोडक्ट्स हैं: ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट,
export packing credit, post shipment and pre shipment, then machinery and building term loan, loan against property, project financing, home loans to directors of companies or partners of a partnership firm also, right? So these are the products which I'll be explaining you, और इसकी assessment भी मैं बताऊंगा कि हम एक प्रोडक्ट इन ये बैंक्स क्या देखता है इसमें, so that आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि एनी एमएसएमई यू नो और एनी क्लाइंट यू नो, चाहे वो आपकी बिजनेस है चाहे आपके क्लाइंट का बिजनेस है, एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि देखते क्या है और कैसे मिलेगा लोन. सो फर्स्टली आई वुड से द डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड सीसी, क्योंकि जनरली मुझे पता है सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट में फर्क क्या होता है. तो बिफोर एनीवन आस्क्स मैं खुद बता देता हूँ, इसमें फर्क कुछ नहीं होता है. इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फर्क होता है कि कैश क्रेडिट में आपकी कवर्नेंट्स और कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट. अब जब हम बात कर रहे हैं कंप्लायंसेस और कवर्नेंट्स की, तो क्या मतलब हुआ उसका मतलब ये हुआ कि कैश क्रेडिट लिमिट जो होती है उसमें बैंक कैन गो अप टू एनी अमाउंट. सपोजिटली जनरली थंब रूल मैंने बताया था आपको 20% देते हैं टर्नओवर का, तो अगर 100 करोड़ की टर्नओवर है तो 20 करोड़ कैश क्रेडिट दे दिया, बट ओवरड्राफ्ट 20 करोड़ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट इज अ क्लीन ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी 5 करोड़ तक तो बैंक्स दे देते हैं, उसके ऊपर वो नहीं देते हैं. ओवरड्राफ्ट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, हाउएवर दे आर मेंट टू बी यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल यूजेस. बट हाँ, कैश क्रेडिट भी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगी. रादर कैश क्रेडिट के लिए हम ड्रॉइंग पावर स्टेटमेंट लेते हैं हर क्लाइंट से, जो बैंक्स लेते हैं हर महीने और क्वार्टर बेसिस पे, कि आपने अगर ये पैसा कहाँ यूज किया है, बिकॉज ऑब्वियसली अल्टीमेटली बैंक हैज द. सो होता क्या है, हम लोग कह देते हैं बैंक ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा, बट बैंक बहुत चीजें करते हैं. और बैंक एट द सेम टाइम बैंक्स आर आंसरेबल टू द आरबीआई एंड देयर ऑडिटर्स, क्योंकि आरबीआई ऑडिट जब होता है तो बैंक के पास सारी चीजें, सारे कंप्लायंसेस पूरे होने चाहिए. एंड फॉर दैट मैटर बैंक्स आपकी बैंक स्टेटमेंट की मॉनिटरिंग करता है कि जो पैसा आपने लिया है, पैसा गया कहाँ, वो आपने कहाँ पर खर्च किया, किसको दिया, किसी स्टॉक परचेज करने के लिए दिया या किसी स्टॉक मार्केट में लगा दिया, किसी को आपने अपने सप्लायर को पेमेंट करी, किसी एक्सपेंसेस के लिए एम्प्लॉइज को करी, या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी में डाल दिया जहां जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, जो आपने लैंड कहीं खरीद के रख ली कि चलो यार प्रॉपर्टी में काम है, प्रॉपर्टी बढ़ेगी. सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सीसी और ओवरड्राफ्ट सेम होते हैं बट सेम नहीं भी होते हैं. सेम नहीं इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ओवरड्राफ्ट बस 5 करोड़ तक ही देते हैं, उससे ज्यादा नहीं. फिर उसमें मॉनिटरिंग भी कम होती है. कैश क्रेडिट में आप कितना भी ले सकते हो बट उसमें मॉनिटरिंग ज्यादा है. सेम वे कैश क्रेडिट में जनरली करंट एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज का मतलब ये हुआ कि आप एमसीए के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है, क्योंकि हर कंपनी जब कोई ना कोई लोन लेती है, लिमिट लेती है, तो हर फाइनेंसर, बैंकर उसमें चार्ज क्रिएट करता है, सो दैट बिकॉज इट्स एमसीए इज अ पब्लिक साइट, सो दैट एवरीबडी शुड नो कि इस कंपनी ने ये लोन लिए हुए हैं, राइट. सो उस बेसिस पर वो चार्ज क्रिएट करना मैंडेटरी होता है. ओवरड्राफ्ट में वो मैंडेटरी नहीं है, हालांकि कई बैंक्स ओवरड्राफ्ट में भी चार्ज क्रिएट करते हैं. नाउ एज आई टोल्ड यू, ड्रॉइंग पावर कैलकुलेशन, बिकॉज कैश क्रेडिट हैज मोर कंप्लायंसेस, तो उसमें ड्रॉइंग पावर भी कैलकुलेट होगी. उसमें कैश क्रेडिट में ड्रॉइंग पावर होता क्या है. सो ड्रॉइंग पावर का एक फॉर्मूला होता है, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ कि जितना स्टॉक है आपका एज ऑन डेट, सपोज 31 मार्च को स्टॉक है 5 करोड़ और 31 मार्च को ही डेटर्स में जो पैसा डाला हुआ है वो आपने डाला हुआ है 7 करोड़. तो 7 + 5 12, और ये आपका जो क्रेडिटर्स में पैसा आया हुआ है, जो क्रेडिट मिला हुआ है, वो है आपका सपोज 4. सो 5 + 7 12 - 4 इज 8. नाउ 8 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल गैप आ गया. ये वर्किंग कैपिटल गैप, तो आरबीआई क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल गैप जो है उसका 75% ही आप बैंक फंड करेगा किसी भी क्लाइंट को एट वन पॉइंट इन टाइम. तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर 8 करोड़ था वर्किंग कैपिटल गैप, तो 75% इज 6 करोड़. तो 6 करोड़ तक आप कैश क्रेडिट किसी भी क्लाइंट को दोगे. अब सपोजिटली बैंक ने सैंक्शन करा हुआ है 10 करोड़ रुपए,
एक क्लाइंट को, राइट? या हम मान के चलते हैं 6 करोड़ हम देख रहे थे जब हम एट द टाइम ऑफ सैंक्शन है, ये 6 करोड़ सैंक्शन कर दिया, लास्ट देखा हमने, अब अगले महीने उसने ड्राइंग पावर स्टेटमेंट फिर देनी है क्लाइंट ने, वहां पर उसकी ड्राइंग पावर और डीपी जो हम कहते हैं वो रिड्यूस हो गई 6 से 5 करोड़, 5 करोड़ ही बैठ रहा है उसका। इन दैट केस वी विल रिड्यूस द क्रेडिट, कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम 6 करोड़ टू 5 करोड़, जो 5 करोड़ तक यूज कर सकता है, और 1 करोड़ उसे जो पहले ज्यादा लिया हुआ है वो वापस बैंक को देना पड़ेगा, अपने बैंक में डालना पड़ेगा, राइट? देन कैश क्रेडिट, एज आई टोल्ड यू कि वो स्टॉक एंड डेटर्स के लिए होता है। ओडी किसी चीज के लिए भी हो सकती है, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, फिक्स एसेट्स के लिए ओडी नहीं होती है। ओवरड्राफ्ट जो है वो मैंने बताया 5 करोड़ तक रहेगा, एज आई टोल्ड यू। सो दैट वाज अ ब्रॉडर डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। नाउ दिस इज कैश क्रेडिट असेसमेंट। तो मैं अब असेसमेंट में जा रहा हूँ, थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूँ, बट ज्यादा कुछ नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए अगर आप ये सेशन कर रहे हो, और ये किसी भी कोई बिजनेसमैन भी है तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो जनरली आरबीआई कोई इम्पोज नहीं करता है कुछ बैंक्स के ऊपर, बट आरबीआई रिकमेंडेड, सो रिकमेंडेटरी नेचर में कुछ कुछ गाइडलाइंस देता रहता है। तो रिकमेंडेटरी गाइडलाइंस ये दो हैं, जो आरबीआई की और भी कई आई हैं, बट जनरली 99% जो बैंक्स अपना यूज करते हैं वो ये दो मेथड यूज करते हैं। 5 करोड़ से नीचे की जो क्रेडिट सीसी 5 करोड़ से नीचे भी दे सकते हैं, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो 5 से नीचे की वो सीधा सीधा टर्नओवर मेथड है, 20% ऑफ द टर्नओवर। वो टर्नओवर लास्ट ऑडिटेड भी हो सकती है, इस साल की भी, और प्रोजेक्टेड भी हो सकते हैं, एज आई टोल्ड यू। और ऐसे ही एमपीबीएफ, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, ये 5 करोड़ से ऊपर के जनरली मेथड, 5 करोड़ के ऊपर की सीसी लिमिट में हम अप्लाई करते हैं, इसको हम सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग भी कहते हैं। तो ये मेथड, तो फर्स्ट मेथड कोई पूछेगा फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट मैं बता दूंगा सेकंड के बाद। तो टोटल करंट एसेट्स, जितने भी आज की डेट में करंट एसेट्स में पैसा लगा हुआ है, लास्ट ऑडिटेड की बात करते हैं हम, उसमें माइनस में टोटल करंट लायबिलिटीज, राइट? जितनी भी लायबिलिटी से पैसा आया हुआ है आपके पास, करंट एसेट मतलब इतना पैसा चाहिए, सपोज 100 रुपीज है, और करंट लायबिलिटीज है सपोज 70 रुपीज की, एक्सक्लूडिंग द ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटीज हम ओवरड्राफ्ट या कोई भी सीसी लिमिट नहीं लेंगे। जैसे करंट लायबिलिटीज में हम क्रेडिटर्स ले लेंगे, हम एक्सपेंसेस पेबल ले लेंगे, हम स्टैट्यूटरी ड्यूज ले लेंगे, इसको माइनस करने के बाद जो आता है वो वर्किंग कैपिटल गैप होता है। और उसका, और 25% ऑफ करंट एसेट्स, यानी कि 100 के अगर करंट एसेट्स थे और 30 रुपीज की लायबिलिटीज थी, तो 30 बच गया वर्किंग कैपिटल गैप। अब 25% ऑफ करंट एसेट्स कितना हुआ, 100 का 25% इज 25, तो 30 माइनस 25, यानी कि सीसी आप सिर्फ 5 करोड़ में दे सकते हो एमएसएमई को, जो भी आपका क्लाइंट है। अब ये तो हो गया मेथड, सेकंड मेथड। अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, तो फर्स्ट मेथड में वो जो 25% ऑफ करंट एसेट्स मैंने लिखा है, वो करंट एसेट्स की जगह दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय वर्किंग कैपिटल गैप। यानी 100 मैंने करंट एसेट्स बोला था, 70 लायबिलिटीज बोली थी, तो 30 का गैप था, 30 का 25% विच इज 7.5, वो यहां से माइनस होगा तो उतना आ जाएगा विच इज 22.5। तो हम जनरली वो फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा मोर रिलैक्सिंग होता है, ये थोड़ा सा आई वुड से वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच है सेकंड मेथड की। तो बैंक जनरली यही अप्रोच फॉलो करते हैं, वो करंट एसेट्स का 25% लेस करके बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो निकालते हैं, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट सीसी लिमिट। अब आते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। सो लेटर ऑफ क्रेडिट एज वी वर टॉकिंग, अभी जो मैं देवांग को भी बता ही रहा था कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, पहले बता देते हैं शॉर्ट में। लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, इट्स एन अंडरटेकिंग बाय द बैंक। बैंक को अंडरटेकिंग दी, बैंक ने, एक बैंक ने दूसरे बैंक को अंडरटेकिंग दी कि सुपोजिटली आप माल भेजो अपना। सो बेसिकली सेलर को ये प्रॉमिस मिलता है, सेलर इज प्रॉमिस्ड दैट इफ यू सेल your goods to a particular buyer, right? Then in that case, that buyer if doesn't pay any amount to you for any reason, then we will pay it to you. तो यहाँ LC
का रिस्क जो है, तो रिस्क मिटिगेट करती है। यहाँ दो चीजें होती हैं एलसी की, दो चीजें हैं। एक ये, सपोज जैसे देवांग भूटान अपना सामान बेच रहे थे, आप भेजा आपने, अब दो चीजें हैं यहाँ। नॉट ओनली यू आर एक्सपोज टू योर पेमेंट, भूटान वाला पार्टी इज ऑल्सो एक्सपोज टू द गुड्स, द क्वालिटी ऑफ गुड्स। अब मान लो वो पार्टी सही है और आपके मन में कुछ ऐसा है कि यार मैं कुछ दिखाया कुछ है, भेज कुछ और दूं गुड्स, तो उस केस में क्या होगा, एलसी तो आपने खोल ली, अब वहां दे आर बाउंड कि हमें तो पैसा देना है, बट आपने माल तो कुछ और भेज दिया। तो एलसी ये कहता है कि माल भी आपको एज पर स्पेसिफिकेशन भेजना है, अदरवाइज दैट बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट टू यू, क्योंकि आपने माल तो वो भेजा ही नहीं, राइट। तो हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट है एलसी से, उसको माल वही मिलेगा जो, अच्छा अगेन सुपोजिटली यू आर सेंडिंग टू गुड्स टू देम, आप अगर वो आपको पैसा पहले दे दे तो वो रिस्क पे आ जाएगा, यार माल तो देवांग भेजे या ना भेजे, मेरे को तो पैसा तो मैंने दे दिया। तो इसलिए एलसी काम आती है। एलसी एक डॉक्यूमेंट है जो बैंक टू बैंक ऑपरेट करता है। आप अपने बैंक में एलसी जाओगे, उन्हें बोलोगे मुझे एलसी खुलवानी है, क्यों खुलवानी है वो अपना रीजन बता दोगे आप, बिकॉज आई एम गेटिंग गुड्स। यहाँ पर अगर गुड्स, ये एलसी लेने वाली बात कर रहा था मैं आपसे, अब एलसी सपोज आप माल मंगवा रहे हो बाहर से, तो आपको एलसी खुलवानी पड़ेगी, या भूटान वाला बायर जो है आपका, उसको एलसी खुलवा के आपको देनी पड़ेगी कि आप सेफ हो, मैंने अपने बैंक से एलसी खुलवा दी देवांग को। अब देवांग सेफ है कि नहीं है, देवांग भी सेफ है, क्योंकि देवांग को पैसा मिल जाएगा, वो पार्टी सेफ है क्योंकि उसको एज पर क्वालिटी के हिसाब से गुड्स मिल जाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑफ स्पेसिफिकेशन हमें पहले उसको देनी पड़ती है, वो सारा डिफाइंड होता है उसके अंदर एलसी में। एलसी हम पहले उसको देंगे या पहले एलसी द सेलर? आई विल टेल यू, पहले एलसी ओपन होगी, एलसी ओपन होने के बाद बैंक स्विफ्ट मैसेज भेजेगा, उसके बैंक आपको भेजेगा, साथ में एक कॉपी आपके जाएगी, एक स्विफ्ट मैसेज उधर जाएगा उनके बैंक को। फिर आप अपने क्लाइंट अपना उससे बात करोगे जिसको माल भेज रहे हो कि ये आपको रादर वो भेजेगा आपको पहले, बिकॉज ही इज ओपनिंग इट ना, बिकॉज ही इज अ परचेजर, यू आर सेलर, तो वो आपको भेजेगा कि आपको मिल गई है कॉपी, तो आप कहोगे हाँ मेरे बैंक को मिल गई है, एंड ये जो स्पेसिफिकेशन है इस हिसाब से होंगे, गुड्स भी इसी हिसाब से जाएंगे जो आपने लिखा है। तो इस हिसाब से ये काम करता है एलसी। और जब वो गुड्स पहुंच जाएंगे देन उसमें टाइम होता है। अगर आप अपफ्रंट एलसी होती है तो उसको अपफ्रंट खोल सकते हो, मतलब एक साइट एलसी कहते हैं, यूजांस एलसी होती है। साइट एलसी में आप जैसे ही माल पहुंचा, बिल ऑफ लीडिंग आया, आपने रिसीव किया और पेमेंट कर दिया, ठीक है उसने। और सेम वे यूजांस एलसी है कि माल तो मिल गया, उसके बाद 3 महीने बाद पेमेंट होगी आपकी, 3 महीने बाद नहीं होती देन बैंक विल पे। तो यूजांस में क्रेडिट पीरियड भी होता है। तो मेरा बस बेसिकली पॉइंट आपसे ये है पूछने का, जो स्पेसिफिकेशन होगी हम जो मटेरियल की देंगे वो हम फर्स्ट उसको भेजेंगे, पहले भेजोगे, अप्रूव कराओगे स्पेसिफिकेशन। अच्छा पहले बायर से अप्रूव करवाएंगे? पहले बायर अप्रूव करेगा आपका कि ये मैंने माल खरीदा है, हाँ ये ओके है और इसी क्वालिटी का आना चाहिए। हाँ, फिर वो अप्रूव करके कॉपी हमारे को भेजेगा उसकी, फिर वो एलसी वहां से खुलवाएगा अपने राइट। और यही मैंने असेसमेंट यहाँ लिखी भी है, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये बड़ा नॉर्मल सी चीज है। ये असेसमेंट का मतलब है कि कितना किसको क्या पेमेंट कर सकते हो, मतलब कितनी एलसी खोल के देनी है। आप मुझे कहते हो मेरी 20 करोड़ की टर्नओवर है, मुझे 40 करोड़ की एलसी खोल के दे दो, मैं कैसे दे दूंगा, कोई भी बैंक नहीं देगा। बट हाँ आप ये कहते हो 20 करोड़ की टर्नओवर है, उसमें से 15 करोड़ ऐसा है जो मेरे को इंपोर्ट करना है माल, मान लो चाइना से इंपोर्ट करना है आपको, तो अब चाइना वाले को आपने एलसी खोल के देनी है, तो आपने 15 करोड़ का माल मेरे को नेक्स्ट ईयर इंपोर्ट करना है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे रॉ मटेरियल टू बी परचेज इन नेक्स्ट 12 मंथ्स वो आप मुझे बताओगे। फिर एलसी के अंदर खरीदना कितने का है, वो 12 करोड़ का सपोज खरीदना है, राइट। तो 12 करोड़ उसमें स्प्रेड्स वगैरह सब माइनस हो जाता है। तो जो परचेजेस आते हैं फिर आपका लीड टाइम देखा जाता है कि आपको कितने, एक साल में तो 12 करोड़ हो गया, उसके बाद आपको मतलब कितने टाइम में आपको वो साइकिल घुमाना है। आपको मान लो 90 डेज के अंदर पेमेंट करनी है, और जैसे ही 90 डेज पूरा होगा आप पेमेंट करोगे, फिर माल मंगाओगे, तो आपको 12 करोड़ की एलसी नहीं देगा बैंक कितनी सैंक्शन करेगा, सिर्फ 3 करोड़ करेगा, क्योंकि वो 4 साइकिल तो घूम जाएंगे उस 3 करोड़ से। जैसे ही 3 करोड़ का आपने एलसी खुलवाया, 90th डे पे आप पेमेंट कर दोगे, एलसी फ्री हो गई, फिर वो एलसी लिमिट दोबारा यूज हो जाएगी।
So that's how banks do their assessment, right? Then बैंक गारंटीज, तो बैंक गारंटी सबने सुना होगा। बैंक गारंटी होता क्या है? तो बैंक गारंटी में तीन पार्टीज होती हैं। एक तो होती है वो जो गारंटी देता है, और वो डेफिनेटली बैंक ही देता है। जब बैंक नाम आ गया गारंटी में तो बैंक गारंटी। फिर एक होता है जो प्रिंसिपल डेटर, यानी कि वो किसके बिहाफ पर गारंटी दे रहा है बैंक। तो फॉर एग्जांपल देवांग, आप अब एक बिजनेस कर रहे हो एंड आपको कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट ने पेपर में निकाला हुआ कि हमें बैंक गारंटी चाहिए, तो आप क्या करोगे? बैंक के पास जाओगे ना कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ और ये मेरे को बैंक गारंटी। तो बैंक आपसे कई कुछ चीजें मांगेगा, वो चीजें मैं अभी बताऊंगा क्या होती हैं। तो वो आपको कॉन्ट्रैक्ट अगर बिड भी करनी है तो आपको बैंक गारंटी गवर्नमेंट मांगती है। तो यहाँ ये तीन पार्टीज हो गई। जो क्रेडिटर्स हो गया वो हो गया जनरली गवर्नमेंट होती है, जिसके फेवर में आप बैंक गारंटी दोगे, जो बैंक देगा, राइट। और दो तरह की बैंक गारंटी होती है। एक होता है परफॉर्मेंस गारंटी। सो परफॉर्मेंस गारंटीज आर द वन वेयर जहां एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है। मतलब सपोजिटली आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि आपने सिविल वर्क करना है एक फ्लाईओवर का, ठीक है, 1 साल के अंदर। अगर वो परफॉर्म नहीं हुआ तो जो आपने गारंटी दी है वो इन्वोक हो जाएगी, और वो सारा पैसा बैंक इसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, राइट। अब क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। दूसरी होती है फाइनेंशियल गारंटी। अब सुपोजिटली आप कोई एलईडी लाइट्स का काम कर रहे हैं, और उस केस में आपको एलईडी, सिस्का आई थिंक एलईडी बनाता है, तो सिस्का ने आपको बोला आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं। तो सिस्का के पास गया, सिस्का ने कहा बॉस सुनो, मेरे पास ऐसे मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देता हूँ। आप अपनी सारी चीजें प्रूव कर दी आपने कि मैं बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे ये कनेक्ट्स हैं, मेरे वो कनेक्ट्स हैं, मैं इतना माल बेच पाऊंगा। तब लास्ट में वो ये कहेगा कि मुझे एक गारंटी चाहिए, मुझे एक अमाउंट चाहिए। सपोज 5 करोड़ का अमाउंट आप मेरे पास ऐसे बैंक गारंटी रखो। कल को अगर माल मैं आपको दूंगा 5 करोड़ तक का दूंगा, फिर जैसे ही आप बेचोगे मैं फिर और माल दे दूंगा। जनरली ये जो जितनी बड़ी ब्लू चिप्स होती हैं, ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ये अपने पास एक सिक्योरिटी रखवाती हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपना पैसा रख दो उनके पास एज अ डिपॉजिट, रिफंडेबल डिपॉजिट, और यू गिव अ फाइनेंशियल गारंटी टू देम। तो वो जो फाइनेंशियल गारंटी में आपको फायदा ये होगा कि आपका जो पैसा 5 करोड़ विच इज ऑब्वियसली मोर वैल्यूएबल फॉर यू, वो आप छोड़ के आप गारंटी दे दोगे। बट वो गारंटी इज इक्वलेंट। अगर वो 5 करोड़ आप मान लो कहीं ना कहीं कुछ होता है, पैसे नहीं दे पाते हो उनके, तो वो 5 करोड़ बैंक आपको आपके बिहाफ पे उसको पार्टी को पे कर देगा। अब लोग ये कहेंगे, सोचेंगे कि यार बैंक अगर ये सब चीजें क्यों कर रहा है, तो बैंक को क्या फायदा हो रहा है? तो चाहे वो एलसी है या बैंक गारंटी है, बैंक को ये फायदा हो रहा है कि बैंक उसकी कमीशन लेता है। एक कुछ सर्टेन अमाउंट होता है, 8% से 1.5% तक वो कमीशन होती है पर एनम के हिसाब से। बट दैट इज चीपर देन अगर वो आप अपने फंड्स इन्वॉल्व करोगे, राइट। आपको तो बैंक को सिर्फ उतना ही देना है 1%। यहाँ आप 8% अगर एफडी में भी रखते हो तो भी आप अपना लूज करोगे 7%। तो इस वजह से ये मैकेनिज्म काम आता है बैंक गारंटी का, राइट। मीन्स अगर एलसी हमारे को सीधा बैंक अगर देता है पैसे सेलर को, ठीक है, और तो बैंक उससे उसके अकाउंट से फिर वो डिडक्ट करता है। और मतलब कितने इंटरेस्ट के ऊपर? वो इंटरेस्ट जो होता है, देखो मैं बताता हूँ। बैंक गारंटी 90 दिन की देती, सपोज 90 दिन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, या 1 साल का है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जनरली बड़ा ही होता है, तो 1 साल के बाद गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आ गया, पीडब्ल्यूडी, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जी ये तो कर नहीं पाए मेरा काम। बैंक में वो जो बैंक गारंटी है वो जाके इन्वोकेशन का लेटर डाल देंगे। बैंक आपको बोलेगा 1 दिन या 2 दिन आप उनका पैसा वापस दो, जो बैंक गारंटी है इक्विवेलेंट अमाउंट, नहीं तो हमें वो पैसा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे काम करती है चीजें। और उसके बाद जब वो पैसा दे देंगे फिर वो पैसा आपसे मांगेंगे। वो पैसा जो रेट होगा वो आपका 9, 10, 11, 12% तक भी जा सकता है, बिकॉज यू हैव डिफॉल्टेड। आपने बैंक गारंटी इज अ नॉन फंड बेस्ड लिमिट, इट्स नॉट अ फंड बेस्ड लिमिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो अ नॉन फंड बेस्ड लिमिट, जो सिर्फ गारंटी की फॉर्म में होते हैं। लेकिन ये जब आप उन पर डिफॉल्ट कर जाते हो तो ये फंड बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो फंड बेस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना शुरू करना पड़ता है। अभी तक तो क्या है, सिर्फ आपने एक कमीशन दी, 1% पर एनम के हिसाब से दे दी, सब चीजें सही हैं, आपकी बड़ी अच्छी कंपनी चल रही है। लेकिन जब आप उसमें डिफॉल्ट करोगे तो वो इन्वोक कर जाएगा। वो मैंने लास्ट लाइन लिखी है, इन केस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट परफॉर्म्ड बैंक गारंटी इज इन्वोक्ड बाय द बैंक। वो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, उतने इक्वलेंट अमाउंट, और फिर वो आपसे मांगना शुरू करेंगे। फिर उस केस में कोलेट्रल, जो ऑब्वियसली बैंक गारंटी है, एलसी है, कुछ भी है, कुछ ना कुछ बैंक कोलेट्रल रखता है। कुछ कुछ स्कीम है जहां पर कोलेट्रल फ्री भी होते हैं, जो मैंने बताया एमएसएमई का, बट कई मैक्सिमम केसेस में कोलेट्रल लेते हैं, चाहे वो 70% हो, 80% हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस केस में ये वो कोलेट्रल को फिर वो सेल ऑफ करते हैं, ऑक्शन करते हैं। वो एनपीए होता है पहले अकाउंट, तो सो दैट्स हाउ द साइकिल है पूरा। तो कई चीजें हैं जो बोलने वाली है, बट 2 घंटे इज नॉट सफिशिएंट फॉर मी टू टेल एनी, मतलब हर चीज नहीं बता सकता मैं। अच्छा, ये बेसिकली एक नॉर्मल असेसमेंट है। ये बेसिकली कैसे काम करते हैं बैंक्स। बैंक ये पूछेगा आपसे, अब जब आप गए कि बैंक गारंटी, आपने कहा जी मेरे को 5 करोड़ की दे दो, तो वो कहेगा भाई क्या, कितने ऑर्डर्स हैं तेरे पास? आप कहोगे मेरे को तो अभी बिडिंग करनी है खाली। वो कहोगे अभी ऑर्डर है ही नहीं, तो बिडिंग करनी है, उसके लिए तो आप एक काम करो, पहले आप मुझे बताओ कि कितने बिड करने हैं ऑर्डर आपने। तो आप कहोगे मेरे को 100 करोड़ के ऑर्डर्स बिड करने हैं, और हर ऑर्डर में, मतलब मान लो 100 करोड़ के 4 ऑर्डर्स बिड करने हैं, बट मेरे को एक टाइम नहीं करने हैं सारे। और वो कहते हैं कि 2% की ईएमडी दे दो मेरे को। ईएमडी इज अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ये बेसिकली अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इज जो वो होता है जहां पर आपको पैसा उनके पास रख देना होता है ताकि आप बिड कर पाओ। तो वो 100 करोड़ का 2% इज 2 करोड़, तो वो 2 करोड़ आपको सैंक्शन करते, बीजी सैंक्शन कर देंगे, एंड बेसिस दैट वो बीजी बना के दे देंगे आपको। आप डिपार्टमेंट में जाओगे, वो बीजी दोगे और बिडिंग कर लोगे। अब सपोज करो बिडिंग करी और ऑर्डर मिल गया आपको, 4 में से 2 ऑर्डर मिल गए, तो 4 में से 2 ऑर्डर मिले, और वो ऑर्डर में अब होता क्या है, जब ऑर्डर मिल जाता है तो आपको परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने परफॉर्म करना है, शुरू करना है, तो उसके लिए परफॉर्मेंस गारंटी भी कहते हैं, उसे एडवांस मनी गारंटी भी कहते हैं। अब आपने कहा गवर्नमेंट को ऑर्डर टेंडर मिल गया आपको 2, वो टेंडर थे सपोज करो 40 करोड़ के, ठीक है। अब वो 40 करोड़ के जो टेंडर, उसमें 40 भी नहीं, आप मान के चलो 70 करोड़ के टेंडर है, आपको मिल गए 100 में से। 70 करोड़ के टेंडर में आपने 5% सपोज रखनी है, तो 5% इज व्हाट, 3.5 CR, 3.5 करोड़। तो 3.5 करोड़ की गारंटी आप बैंक को दो, बैंक से लोगे और गवर्नमेंट को दोगे। और गवर्नमेंट क्यों चाहिए गवर्नमेंट को गारंटी? क्योंकि आप गवर्नमेंट को कह रहे हो, डिपार्टमेंट को, दैट नाउ आई एम स्टार्टिंग माय वर्क, मुझे कुछ तो एडवांस दो, राइट? तो बेसिस दैट गारंटी वो आपको एडवांस रिलीज कर देंगे, राइट? उससे आप अपना काम शुरू कर लोगे, और उसके बाद धीरे धीरे वो फेज मैनर में आप बिलिंग करते जाते हो, वो पैसा आता जाता है। फिर वो मोबिलाइजेशन एडवांस इज ऑल्सो द सेम थिंग, राइट? तो ये अलग अलग न्यूमरोलॉजीज होती हैं गारंटीज की। फिर होती है लास्ट में रिटेंशन मनी। होता क्या है, 1 साल हो गया, सब कुछ हो गया, अब गवर्नमेंट की जनरली या किसी की भी टेंडर की होते हैं कि आपने सारा काम कर दिया, बट वी विल स्टिल होल्ड 5% ऑफ योर अमाउंट। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कल को तुमने, आई एम सो सॉरी दिस, दैट आपने फ्लाईओवर बना दिया, अब वो फ्लाईओवर में कुछ क्रैक्स आ गए, तो दे वुड ऑब्वियसली सी दिस योर परफॉर्मेंस कि भाई जो सामान जो भी आपने डेवलप किया है, क्वालिटी है, वो क्या अगले 6 महीने या साल भर तक रहेगी? तो उस केस में वो क्या करते हैं, वो आपसे वो गारंटी मांगते हैं, ये रिटेंशन मनी आपने दे दो हमें, हम आपका पैसा रिलीज कर देंगे। लेकिन जिस टाइम वहां कुछ इशू आएगा अगले 6 महीने तक, वो टाइम बाउंड होता है, तो हम ये इन्वोक कर देंगे। उस केस में फिर अगेन बैंक आपके बिहाफ पर दे देगा और आप लायबल हो जाओगे, राइट? सो दैट वाज ऑल अबाउट बैंक गारंटी। तो इसमें नेचुरल क्राइसिस भी ऐड होते हैं? तो टर्म्स टू टर्म्स डिपेंड करता है। मैं नेचुरल क्राइसिस मेरे हिसाब से नहीं होते हैं, ये तो उनकी टीम टेक्निकल की बात करती है। मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ एक फ्लाईओवर का, मतलब कितनी चीजें हो सकती हैं। देन एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। सो समबडी आस्क्ड मी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट जो होता है
एमएसएमईज को ये इसलिए दिया जाता है कि ये सो एक्सपोर्ट के पैकिंग क्रेडिट कैन बी इन द टू फॉर्म, एक प्री शिपमेंट, दूसरा पोस्ट शिपमेंट। तो जो प्री शिपमेंट होता है उसमें आपको माल खरीदना है। सपोज देवांग मेरे पास आए, मैं बाहर हूँ, सपोज मैं यूएस का क्लाइंट हूँ, देवांग आप मेरे पास आए कि जी मैंने तो माल आप ऑर्डर ले लिया आपने मेरे से, राइट। अब मैंने इनको ऑर्डर दे दिया, एक ऑर्डर कॉपी इनके पास है। नाउ ही वेंट टू, आप जाएंगे अपने बैंक के पास कि मेरे पास ऑर्डर तो काफी है एक्सपोर्ट का, बड़ी फर्म है वहां की भी, यूएस की, बट मेरे पास पैसा नहीं है, राइट, मुझे माल बनाना है पहले। तो जब आप माल बनाने के लिए अपने बैंक के पास जाते हो तो बैंक आपको कहता है कि ठीक है, ये कंडीशन स्पेसिफाई करो, बेसिस दैट हम आपको पैसा देते हैं, विच वुड बी इन द डॉलर टर्म्स, डॉलर में पैसा देंगे आपको, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट करना है तो हम डॉलर में ही पैसा दे देंगे, मतलब फंडिंग डॉलर में, आप पैसा यहाँ पे आपके अकाउंट में ही आएगा, आईएनआर में खर्च करो आप, तो वो थोड़ी सी सस्ती होती है, चीपर होता है डॉलर फंडिंग। रेट में देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डॉलर के भी हैं, दैट हैज गॉन हाई एज गुड एज, बट पहले इनिशियली इट यूज्ड टू बी ओनली 3% ओनली, लाइबॉर लिंक जब होता था ये, एल प्लस लाइबॉर कम होता था रेट, तो ये 3% तक भी फंडिंग मिलती थी, तो काफी फंडिंग एक्सपोर्टर्स यूज करते थे। आज की डेट में भी है, बट ये उतनी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। और वो डॉलर टर्म्स में ही देता है, चाहे वो 2% भी कम है, विच इज 2% इज ऑल्सो नॉट लेस। तो कई एमएसएमई जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये यूज कर रहे हैं, एंड वी हैव नोन दैट कि 45% ऑफ द प्री शिपमेंट की, शायद मेरे ख्याल से ये कईयों ने नहीं सुनी होगी प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट, बट आई एम एक्सप्लेनिंग इट। तो इसकी अगेन एक असेसमेंट होती है, उसकी वो असेसमेंट ये होती है कि आपने कितनी इन्वेंट्री आपने के पास पड़ी हुई है, आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आप प्रोजेक्ट कितनी कर रहे हैं, उसमें से आपको कितना एक्सपोर्ट के लिए आप बना रहे हैं, राइट। तो उस हिसाब से ये डिराइव होता है फॉर्मूला, बेसिस दैट वो लिमिट सैंक्शन करता है बैंक, और उसके बाद यू शुड हैव एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। सपोज मैंने आपको लिख के दे दिया कि ठीक है, ये मैं ईमेल कर दिया, ये रहा मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर, इतने $1000 का, इतने आप ये बना के मेरे को दे दीजिए, मेरी टर्म्स ये रहेंगी, मैं 90 डेज में आपको पेमेंट कर दूंगा, आप मेरे को अगले 2 महीने में बना के दे दो, 2 महीने के बाद जब मेरे पास आएगा उसके 90th डे पे मैं पेमेंट कर दूंगा, राइट। तो आपका 5 महीने का साइकिल हो गया। अब 2 महीने का साइकिल, तो आपको पैसा चाहिए अपना माल बनाने के लिए, राइट। उसके लिए आप मेरे से मतलब अपने बैंक से लेंगे प्री शिपमेंट क्रेडिट, जो आपको पैसा माल इन्वेंट्री तैयार करने के लिए चाहिए। देन ऑब्वियसली आप टाइम आ गया, आपको इसको डिस्पैच करना है, तो आप वो डिस्पैच कर देंगे एज पर स्पेसिफिकेशंस। नाउ यू विल गो टू योर बैंक कि जी अब मैं पैसा कैसे दूं, मेरे को तो ये माल भेजना है, अभी तो पैसा आएगा नहीं मेरे पास। तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा आप पोस्ट शिपमेंट में आ गए हो, यानी कि आपने माल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी क्या करता हूँ, अपना प्री शिपमेंट नॉक ऑफ कर देता हूँ और पोस्ट शिपमेंट एक्सटेंड कर देता हूँ, जो कि आपका 3 महीने का है। 3 महीने बाद बट थर्ड मंथ में वो पैसा आपके पास आ जाएगा, तो मैं कर दूंगा उसका नॉक ऑफ, खत्म कर दूंगा, जब मैं दे दूंगा आपको पैसा एज एन एक्सपोर्टर। अगर वो पैसा नहीं आता, यू विल हैव टू पे फ्रॉम योर ओन पॉकेट। इन दैट केस अगर वो अगेन वो रिमूव हो जाएगा, राइट। तो वो 90th डे तक पैसा आना चाहिए आपको। तो हमें इसे एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग भी कहते हैं, जो शिपमेंट करने के बाद की स्टेज होती है, राइट। क्लियर। नेक्स्ट इज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो ये एक और बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इसकी असेसमेंट बैंक कैसे करता है, बैंक कहता है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता क्या है, कोई भी एक प्रॉपर्टी आपके पास पड़ी है, आप बिजनेस कर रहे हो, अब देर आर लॉट मेनी कंप्लायंसेस, लॉट मेनी कवर्नेंट्स इन कैश क्रेडिट। बैंक कहता है भाई मेरे को तो ड्राइंग पावर स्टेटमेंट भी चाहिए, मेरे को तो सीए की सर्टिफिकेट चाहिए, पैसा यहाँ यूज हुआ है, इधर क्यों गया उधर क्यों गया। सो बैंक्स ने एक प्रोडक्ट डिवाइस किया है, क्योंकि बैंक अल्टीमेटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उन्हें पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कई लोग जो जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूरा कर पाते, दे विल गिव यू, दे जनरली इंटरेस्टेड इन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि भाई हमारी प्रॉपर्टी रख लो। दिमाग ने कहा, दिमाग के पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बैंक के पास गया, ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी रखो और मेरे को पैसा दे दो। तो बैंक कहेगा भाई मैं सारा पैसा नहीं दूंगा,
क्योंकि इसमें ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी की कवरेज ज्यादा लूंगा। 100 रुपए की प्रॉपर्टी पे मैं आपको सिर्फ 7 रुपए दूंगा, बट मैं पूछूंगा कुछ नहीं है आपसे, आप उस पैसे को जो मर्जी करो, बट सट्टे में मत डालना, यानी स्टॉक मार्केट में मत डालना, बाकी जो मर्जी करो। सो ये बेसिकली बैकग्राउंड है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। इसमें होता क्या है, जनरली हम प्रोजेक्ट लास्ट ऑडिटेड जो होते हैं उसी के बेसिस पे हम अपनी असेसमेंट बनाते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ उसके अंदर कई कई एक्सपेंसेस ऐड बैक कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एमएसएमई दिखाता नहीं है, ये सबको पता है। टैक्स किसी को नहीं देना है। अब वो किस वजह से नहीं देना है वो मैं आई विल नॉट गो इनटू दैट डिस्कशन, बट प्रॉफिट नहीं दिखाते हैं तो उस केस में इसमें सैलरी जो पार्टनर उठाता है, अगर पार्टनरशिप फर्म है, डायरेक्टर उठाता है, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो हम ऐड बैक कर देते हैं। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, हम उसको ऐड बैक कर देते हैं। ऐसे ही जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको ऐड कर देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करके एक कैश प्रॉफिट टर्म डिराइव होती है, जिस बेसिस पर हम उसको उसकी एक ईएमआई बनाते हैं और उसको उतना लोन दे देते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ हम कैलकुलेशन करते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो, अगर हम लोगों ने सुना हो, अपने सीए भाइयों ने ऑब्वियसली सुना होगा, किया हुआ है सब कुछ, तो वो डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालते हैं और उस बेसिस पे इसको लोन एक्सटेंड कर देते हैं। सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पोनेंट्स नहीं होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट अमंग बैंक्स एंड अमंग बिजनेसेस आल्सो। देन टर्म लोन, सो टर्म लोन, और सो होता क्या है, टर्म लोन हो गया या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये ये ईएमआई बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, और इससे पहले मैंने जो जो बताए वो सारे 1 साल बेस्ड प्रोडक्ट हैं, 1 ईयर बेस्ड, यानी 1 ईयर के बाद दे विल हैव टू बी रिन्यूड। वो रिन्यू करेगा, बैंक देखेगा, क्योंकि वो हम वापस नहीं देते हैं, ओवरड्राफ्ट या सीसी में हम सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं, हम उसको पैसा तो वापस नहीं दे रहे हैं बैंक को, बट देन बैंक, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये पूछेंगे कई लोग कि पैसा तो वापस ही नहीं देना, ऐसा नहीं है, हम हर साल रिन्यू करेंगे। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो बैंक उसको रिन्यू कर देगा, अगर बिजनेस खराब हुआ तो बैंक उसकी या तो वो रिडक्शन कर देगा या उसको एग्जिट में डाल देगा कि ये पैसा रिकॉल कर लो। बट इस केस में टर्म लोन में या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ये ईएमआई, अगर टिल द टाइम यू आर पेइंग योर ईएमआई ऑन टाइम, बैंक को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो आपका बिजनेस कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है, यू आर पेइंग योर ईएमआई ऑन टाइम। बैंक 15 साल, जैसे लैब जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 15 साल के लिए होता है, टर्म लोन जो होता है वो स्पेसिफिकली 5 या 7 साल के लिए होता है। उसमें डिफरेंस जो है वो यूसेज का होता है, वो बता दूंगा अभी। बट ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर आपको सिर्फ अपना पैसा वापस देना है, बैंक कुछ नहीं देखेगा कि आपका बिजनेस कैसा है। ओडी, सीसी, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, एलसी में बैंक देखेगा कि आपका कैसा बिजनेस चल रहा है, हर साल वो रिन्यू करेगा और उसकी रिन्यूअल फीस भी होगी। बट हाँ, जिस साल खराब होगा बिजनेस उस साल वो रिकॉल भी कर लेगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क। टर्म लोन जो होता है वो बेसिकली बैंक तब देता है जब कोई मशीनरी या बिल्डिंग परचेज करनी होती है 7-8 सालों के लिए। So that is all about this. Then I will go to home loan. अगेन ये होम लोन जो डायरेक्टर्स और पार्टनर्स को होता है, तो होम लोन की वर्किंग सेम होती है जैसे लैब की होती है। उसमें भी हम, क्योंकि डायरेक्टर्स को अगर हम होम लोन दे रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि डायरेक्टर और कंपनी बिल्कुल सेम चीज है, पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म सेम है, इसलिए हम पार्टनरशिप फर्म की भी सैलरी ऐड कर लेंगे डायरेक्टर्स या पार्टनर को लोन देने के लिए। दैट्स इट। इसके अलावा अच्छा, अब होता क्या है जनरली, कैन आई टेक अ ब्रेक फॉर 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।
Yeah. Yeah, friends. So now I think session is almost, it's only 15 minutes left. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो ये सरोगेट प्रोडक्ट्स मैंने लिखा हुआ है. सो सरोगेट का मतलब ही यही है बेसिकली, वो चीज जो जेन्युइन नहीं है. सो यू नो सरोगेट आप किससे रिलेट कर रहे होंगे, मुझे पता है. सो सरोगेट वो चीज है जहां पर आपको एक्चुअल पिक्चर जो दिख रही है वो एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं. सो एमएसएमईज की जो बैलेंस शीट्स होती हैं वो दे आर वेरी मतलब हर किसी को पता है कि प्रॉफिट 0.01% आएगा या 0.1% आएगा. बैंक्स ऑल्सो नो दिस. बैंक को ये पता है कि नेट प्रॉफिट जो है वो तो कम दिखाएगा एमएसएमई, बट ग्रॉस प्रॉफिट पे वो काम कर सकते हैं. तो वो ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं कि हाउ मच ग्रॉस प्रॉफिट दे आर अर्निंग, एंड बेसिस दैट वो लोन एलिजिबिलिटी निकालते हैं. वो ग्रॉस प्रॉफिट में अगर उन्हें पता है कि उनके, सो बेसिकली बैंक्स हैव डिवाइस देयर ओन टूल्स कि ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं. तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते नहीं है, हालांकि एक्चुअल बैलेंस शीट में ज्यादा दिखेंगे. तो बेसिस दैट वो उन्हें पता है कि दैट this client or this MSME unit is in a position to pay off their debt. So basis that वो अपना मेथड डिवाइस करते हैं. अगर ग्रॉस प्रॉफिट भी कम है तो जीएसटी टर्नओवर देखते हैं वो कि टर्नओवर तो ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिखाया, नेट प्रॉफिट भी नहीं दिखाया, कोई दिक्कत नहीं. टर्नओवर के बेसिस पे कुछ एक इंडस्ट्री मार्जिन मेथड्स हैं कि वो, फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर में वो 5% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो 8% है, 10% तक भी जाते हैं कई बैंक्स. सो बेसिस दैट वो निकाल लेते हैं कि यार ये दिखा इतना नहीं रहा है बट इनका प्रॉफिट इतना होगा, राइट. सेम वे बैंकिंग टर्नओवर प्रोडक्ट्स होते हैं कई जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है. वहां क्या करोगे, वहां पर इन दैट केस जैसे स्कूल पब्लिशिंग हाउस है वहां पर नहीं है एप्लीकेबल. तो उस केस में हम बैंकिंग देखते हैं कि बैंकिंग में कितना पैसा आ रहा है जा रहा है. बेसिस दैट वो टर्नओवर के से लिंक उसकी टर्नओवर निकाल के उसकी एलिजिबिलिटी डिराइव की जाती है. देन नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ एवरेज बैलेंस प्रोडक्ट्स. अब मान लो सारी चीजें ही नहीं है, ना ग्रॉस प्रॉफिट पूरा है, ना टर्नओवर ज्यादा है, ना कैश प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, बट क्लाइंट ने बैलेंसेस अच्छे रखे हुए हैं अपने. अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं. अब हर टाइम 10 लाख जो बंदा रख रहा है, दैट मीन्स ही is not a person. See, every businessman knows that every businessman knows that how they should utilize the money, but if still that he or she is keeping the balances in their account, that means कि उसके पास पैसा ठीक है, तो हम उसे एवरेज बैलेंसेस पे कैलकुलेट करके लोन दे सकते हैं. देन देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड लिक्विड इनकम प्रोग्राम. अब सारी चीजें फेल हो गई ऊपर, तो उस केस में लिक्विड इनकम प्रोग्राम ये होता है कि जनरली हम लोगों ने सुना होगा पुरानी दिल्ली में कच्चे की इनकम ज्यादा है. कच्चे का तो बहुत ज्यादा है बट दिखाते नहीं है. सो जनरली कच्चे का मीन्स जहां पर बिलिंग नहीं होती है. तो जनरली कुछ बैंक्स ने ये डिवाइस करे हुए हैं टूल जहां पर वो लिक्विड इनकम प्रोग्राम में जाते हैं लोग, वहां देखते हैं, उनकी पर्चियां देखते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड, पुराने लोग पर्चियां रखते थे अपने उसमें, तो वो सब ऑफ द पेपर्स होता है, बट लोन उसके बेसिस पर भी होता है, राइट. सो दीज आर सरोगेट प्रोडक्ट्स. नाउ चैलेंजेस फेस्ड बाय द मेनी बैंक, सो बाय क्लाइंट्स फ्रॉम द मेनी बैंक. सबसे मेजर चैलेंज जो मेरे को पता है, जो मैंने अपने 18 साल के करियर में देखा है, when I was in banks and all, and now when I am on the other side, when I am running my own show on financial consultancy, रिलेशनशिप मैनेजर के बहुत इश्यूज होते हैं. नोबडी, so probably 5% of the relationship manager, so RM relationship manager is the one who takes care of the account of the clients in banks. तो जनरली ये लोग जल्दी या तो इनके ट्रांसफर होती है या चेंज हो जाते हैं या बैंक चेंज कर लेते हैं. इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक्स ये RM चेंज ही हो जाता है हर 2 साल में, और गवर्नमेंट बैंक्स में जनरली यहाँ पर ट्रांसफर होता रहता है. तो बहुत ही कम्युनिकेशन गैप रहता है इसमें. ये जो चैलेंज बहुत मेजर चैलेंज है. अच्छा, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज बिकॉज इट्स सो देयर आर मेनी बैंक्स. अब तो इतना खुल गई है बैंकिंग. नाउ दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, दे डोंट हैव द नॉलेज टू एक्सप्रेस टू द क्लाइंट्स को कैसे समझा पाए. इनफैक्ट उनको भी कई बार नॉलेज का बहुत ज्यादा उसकी वजह से they are not in a position to understand the clients की क्या प्रोडक्ट्स हैं. उनको कईयों को खुद नहीं पता क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें पिच करने हैं, राइट. देन द अदर प्रॉब्लम इज
बैंक प्रोडक्ट स्पेसिफिक इश्यूज, दैट मीन्स कुछ कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है ज्वेलर को देने के लिए, या कई लोग बड़े कॉशियस हैं कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देना है क्योंकि उनकी पेमेंट्स लेट होती हैं राइट। देन देर आर कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो एक बैंक के पास होंगे, दूसरे बैंक्स के पास नहीं होंगे। कुछ ऐसे हैं जहां जैसे प्राइवेट बैंक्स कुछ ऐसे हैं जो सीजीडीएमएसई करते ही नहीं है, तो हालांकि गवर्नमेंट ने रिलेटेड स्कीम्स है बट वो नहीं करते हैं, और कुछ बैंक्स करते हैं। कुछ जैसे प्रोजेक्ट फंडिंग दैट इज नॉट अवेलेबल, जनरली नॉट अवेलेबल विद प्राइवेट बैंक्स। जो प्रोजेक्ट फंडिंग गवर्नमेंट बैंक्स कर सकते हैं इन मल्टीपल बैंकिंग, वो प्राइवेट बैंक्स में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। हालांकि दे डू हैव देयर ओन डिविजन्स, कॉर्पोरेट बैंकिंग डिवीजन एंड ऑल, बट एमएसएमई, इफ वी टॉक अबाउट एमएसएमई, क्योंकि हम यहाँ पर आज बैठे हैं एमएसएमई के चैलेंजेस के लिए, तो वहां पर प्राइवेट बैंक्स में बहुत कम सुनवाई है। सेम वे गवर्नमेंट बैंक्स जो है वो सरोगेट प्रोडक्ट्स नहीं करते हैं। जो सरोगेट प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए, जो एमएसएमई में प्राइवेट बैंक्स हम लोग करवा देते हैं, वो गवर्नमेंट बैंक्स नहीं करते हैं। उनको प्लेन वनीला प्रोडक्ट चाहिए, प्लेन वनीला केस चाहिए, पूरा अच्छा सा कैश फ्लो चाहिए, देन ओनली दे विल प्रोसेस द केस। देन देयर आर पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज। कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पर पॉलिसी किसी किसी बैंक्स की बहुत ही कूल है क्योंकि वहां के बिजनेस हेड आ गए हैं, फ्लेक्सिबल हैं, तो बेसिस दैट दे आर टेकिंग अ कॉल। कई ऐसे बैंक्स हैं जहां वो बड़ी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हैं, कॉल नहीं ले पा रहे हैं। अब ये पर्टिकुलर एमएसएमई को नहीं पता है कि वो कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस बैंक में नॉक करेगा। उस सिचुएशन में हम जैसी एजेंसीज, जो हम सीएज हैं, आप लोग सीएज हैं, जो जो इस फील्ड में हैं, फाइनेंशियल फील्ड में है, बैंकिंग फील्ड में है, वो काम आते हैं जो उनको सही एडवाइस करें। देन उसके अलावा आई थिंक ये पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज कहीं ना कहीं रहते हैं। जैसे कई सो व्हेन आई वाज इन बैंकिंग, तो मैंने कितना रियलाइज किया कि जिस भी एमएसएमई के पास हम बैंकिंग करते थे, हमारे क्लाइंट्स होते थे, तो बैंक कहता है जी इससे इंश्योरेंस भी लेनी है। अरे इंश्योरेंस क्यों लेनी है? इंश्योरेंस इज अ सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर क्लाइंट, नॉट अ पुश प्रोडक्ट। बट यहाँ पर वो उन्होंने पुश प्रोडक्ट करके उनको देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग काम आते हैं जहां वी कैन से नो बॉस, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग ऑन क्लाइंट्स बिहाफ, राइट। देन ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत हैं। फाइल सैंक्शन हो जाती है, उसके बाद भी डिसबर्समेंट नहीं हो पाता है फॉर व्हाटएवर अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दे आस्क फॉर। देन कई कई ऐसे जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं, एलसी, बैंक गारंटी, या फिर पैकिंग क्रेडिट एंड ऑल, बायस क्रेडिट, यहाँ पर ये कितनी ऐसी ट्रेड की टीम्स हैं, दे आर नॉट फुली इक्विप्ड विद दिस, क्योंकि ये जनरली इंटर बाउंड्री ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड होता है। बट इसमें भी कई बैंक्स में नॉलेज का देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज। देन देयर इज अ टैट रिलेटेड इश्यू। सो टैट मींस टर्न अराउंड टाइम। तो ये कई कई वर्किंग कैपिटल केस में 3-4 महीने मैंने खुद देखे हैं लगते हुए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर कोई अपने आप जाएगा बैंक में और मजाल है कि उसका 3 महीने 4 महीने से पहले काम हो जाए। देन एफएक्स मार्जिन होते हैं, जब आप कुछ इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो, तो उससे रिलेटेड बैंक्स जनरली बोल देते हैं हम आपसे 1 पैसे का मार्जिन ही चार्ज करेंगे, बट जनरली ये क्लाइंट को भी नहीं पता चलता है कि वो कब उससे 10 पैसे चार्ज कर दिए उन्होंने। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? नीड ऑब्वियसली एमएसएमई नीड्स अ बैंकिंग पार्टनर और एन एक्सपर्ट हु कैन गिव सॉल्यूशन, राइट। हम पहले उनको समझते हैं। कंपनीज लाइक अस, बिग पॉकेट, वी अंडरस्टैंड their issues and then we give the solution to them. We are connected with all the banks, with all the banking channel, all the banking partners, all the NBFCs also. Basis that we give solution to them. And यहाँ पर so you can say that कि ऐसा नहीं है कि अगर client को X product चाहिए हम Y pitch कर लेंगे, हमें X ही देना है और बैंक को भी यही बोलना है, irrespective कि वो banks के profitable हो या ना हो deal. So, and we do negotiate with the banks because we are doing almost 200 crores almost in a month overall. So we have a good say, or you can say a negotiating power to us. Thank you so much. Now I know that it's I think if we can cover any questions or anything. Yeah, Arushi ma'am. Yes, sir. Yes, sir. So, Sachin sir, we have again received a few bunch of questions. The first question says, whether new units are eligible for CGTMSE coverage?
Whether New unit. new units. So as Yes, I told sir. you that government has not specified any time that they should be of that much of vintage. But yes, they have said that proper track record. So when government has specified that proper track record, so every bank is taking at least 3 years of last audited financials before going ahead for the CGTMSE funding, because it's an unsecured, no, so obviously it's a very high risk product for banks, तो वो बड़े ध्यान से करते हैं इसको. Okay. So the next question is, under the Companies Act 2013, what relief or exemption is provided about the amount of loans, rate of interest, security provisions, etc.? You are saying a I'll company which repeat. is formed in 2013. Right, so under the Under- Companies Act 2013. Right. Okay. So I think this is very vast question, because so it depends on whether this company is an MSME, and if it is an MSME, it can go and if it has a proven track record, it can go in fact for obviously not for a startup, because startup has a tenure of maximum 10 years. तो स्टार्टअप में वो इन्वॉल्व हो नहीं सकती है. अगर वो 2013, यू आर टॉकिंग अबाउट 2013 में फॉर्म हुई है, राइट? या एज पर कंपनीज एक्ट 2013 यू आर सेइंग? Yeah, as per Companies Act 2013. तो इट डिपेंड्स. अगर वो फॉर्म 10 साल पहले हुई है, 10 साल से विद इन 10 years है, तो इट कैन रजिस्टर इटसेल्फ इनटू स्टार्टअप एंड इट कैन टेक अ फंडिंग फ्रॉम बैंक. सो इट डिपेंड्स देयर वर्किंग कैपिटल गैप आल्सो. जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी कुछ ना कुछ टर्नओवर कर रही होगी, राइट? उस टर्नओवर के बेसिस पर, उसकी बैलेंस शीट के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे. एज फार एज एग्जेम्पशंस आर कंसर्न्ड, दे आर वेरी सेक्टर स्पेसिफिक. मैं एक कंपनी किसी भी सेक्टर को नहीं बोल सकता ऐसे. लाइक हैंडलूम है, हैंडलूम हैव देयर ओन एग्जेम्पशंस. या आज की डेट में अगर चिप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, दे हैव अ गुड नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. दे हैव अ गुड इंसेंटिव्स लिंक्ड विद दैट. तो वो हर सेक्टर डिपेंड करता है. दैट डिपेंड्स कि वो किस सेक्टर में है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसका सिबिल कैसा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है. Okay. So the next question is, what schemes are available for women entrepreneurs? So women entrepreneurs, there are lot many schemes, but for this I will have to check, because I may not aware about the women schemes in per se. But yes, definitely, if this person wants to connect with me, maybe in a day or two, I will come back to him about the schemes which are available. Sure, sir. So the next question is, the schemes that you discussed in the PPT were very encouraging. So where is the gap currently linking scheme to the business? Who need it and what is missing, and what do you think is the solution? Can I have a look into that? Yes. ये कुछ बहुत ज्यादा जी स्ट्रीम. Okay, that is very good question. So what happens is, I have been constantly saying throughout my session that MSMEs maybe 10% or 50% are the one who may be knowing which product suits them and what are the schemes of the government. There are a lack of availability of professionals who can connect both bank as well as clients or MSMEs to them. Now, the banks are also very bullish to give them, but then they don't find any MSMEs, right? They don't have that kind of resources also to go out and search for the MSMEs. We as a professional, as a team, have lot many resources who go out and find the clients, find the MSMEs who do not have taken funding, but yes, we can get connected to the banks. And this is not depends only on me. I'm not talking about me only. There are lot many agencies, lot many professionals, financial consultants who are into this kind of profession, जहां पर वो अपना clients को connect करते हैं banks के साथ. Okay.
Sir, the next question is CIBIL rating process same for both individual and company? Is the CIBIL rating process is same for both Yes, individual that and is the for company? both civil as well as for company. Okay. Uh, let's say if a new credit to MSME, new credit to MSME of rupees 100 crore was declared in the last union budget. So when the scheme is coming into operation? This is very, this I have to check because as of now, no advisory has been published by RBI on this. It was approved by budget, but hasn't been given to RBI as yet. Okay. And so the last question is, let's say if I prepared the check on 40th day and I hand it over to the supplier on the 60th day, will there be any issue? No, so I didn't get it. So you are saying that if a person prepare a check on 40 days, okay, 40 days, but hand over the supplier to 60 days. That means so you are saying that कि 40 दिन का चेक बना के और 60th डे पर पेमेंट हो रही है, right? That's what he is Right, saying. sir. So 60th day पर Right. पेमेंट हो रही है, then in that case, see either that person will speak to the supplier कि भाई 45 days तक मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, please hold, do not go to RBI or Samadhan portal, just wait for another 20 days. मैं 60वें दिन आपको पेमेंट कर दूंगा, एंड वो पेमेंट अगर हो जाएगी ठीक है, अदरवाइज दे विल गो फॉर दैट. Okay, sir. So these were the only questions right now that needed your Last question is this. What is Okay, so somebody has asked what is moratorium period. So moratorium period is generally given by banks to a unit, MSME or any unit, where they so this generally happens in project financing. So when a project is installed by a particular person and for which funding has been given by the bank, what has happens is that they generally see the viability and marketability of the project also. When this project is going to start and when this project is going to give you profits, or when this project will be at break even. तो होता क्या है, generally commonly होता है कि 12 महीने से 18 महीने तक कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर लगता है तो मॉरेटोरियम दिया जाता है. दैट मींस ओनली इंटरेस्ट विल बी पेड बाय दैट पर्टिकुलर बोरोअर एंड नो EMI और प्रिंसिपल विल बी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय दैट पर्सन. जब 18 महीने खत्म हो जाएंगे, प्रोजेक्ट बन जाएगा, द प्रोजेक्ट की सेल स्टार्ट हो जाएगी, देन दे विल बी रिक्वायर्ड टू गिव द EMIs और प्रिंसिपल ऑल्सो. So that is, we call it moratorium period. That's it. Yeah, Arushi ma'am. yes, sir. I requested you please give the vote of thanks to our speaker CA Sachin ji. Sure. So, on behalf of everyone, I would like to extend our sincere gratitude to Mr. Sachin Dargan for, taking the time to share his valuable insights with us. Your expertise in financial solutions for SMEs and your wealth of experience across the banking sector has provided us with a deeper understanding of the current landscape and the opportunities within it. We look forward to more opportunities to learn from you in the near future. Thank you. I am very happy, and I very much cherished this experience, and I would also say that anyone can interact with me after this session for any of the banking needs of your client or anybody. My mobile number is 981 067 3050. I am also available on LinkedIn too. Thank you so much.
Thank you, sir, for giving a wonderful session, Thank you, and sir. thank you, Arushi ma'am, for coordinating us Thanks, Arushi. session.